हाँ।
Good evening, sir. Good evening. Hello, everyone. Hello, everyone. Sir, good evening. Good evening, Ji. Good evening. Good evening. Would you please enable screen sharing? Just a minute. Just a minute. Yes, done. Good evening, everyone. Evening. पार्टिसिपेंट कम है लग रहा है आज। 9 हुए हैं अभी तक। 1-2 मिनट और वेट कर ले क्या? हाँ सर, 1-2 मिनट अभी वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक कुछ नॉर्मल है सर, इजी है, इसलिए मे बी पार्टिसिपेंट्स कम है। हेमंत सर, Yes. आई थिंक हमें ग्रुप में एक मैसेज डाल देना चाहिए that we are हाँ, live. डाल देते हैं बिल्कुल। आप डाल रहे हैं, मैं डाल दूं? मैं कर देती हूँ मैसेज। ठीक है। Hello, friends. I am. आई थिंक हम स्टार्ट कर देते हैं। अदर कैंडिडेट भी वेट कर रहे हैं। यस सर। हाँ। Okay. शिल्पा और So my voice is audible, sir? यस यस। No? हाँ जी, बिल्कुल ऑडिबल है। Audible? यस। Okay. So today I'm starting with the introduction of TKC Academy. So basically, Hemant sir has already told about this, why we formed TKC Academy, who are we, and what is our vision and mission.
So just to give a brief idea about TKC Academy and what are the courses available in TKC Academy. So let's spend our 5 to 10 minutes in the introduction of Academy. So basically, we are a team of chartered accountants. CA Hemant Mehta sir is there, CA Nitesh is there, and two other members like Poonam ma'am is there, Anshu ma'am is there, and our mentors are Tarun Kandhari sir and Renu ma'am. So basically, we are a team of MBAs, chartered accountants, lawyers, and company secretaries. We have formed this academy to provide practical training and practical knowledge to all the students and all the learners. There is no age bar. Any person of any age can come here and attend the sessions and take practical training. और यहाँ पे एक बेनिफिट ये भी है कि जो भी हमारे यहाँ पर लर्नर्स आते हैं तो उन्हें थियोरेटिकल पहले पढ़ाया जाता है, उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है और फिर उनके बाद बिकॉज वी आर अ सीए फॉर्म, तो हम सीए फॉर्म में उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देते हैं ताकि उन्हें रियल टाइम का एक्सपीरियंस हो जाए, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाए. सो बेसिकली हु आर वी आर अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स and we are having total experience of more than 3 decades, and we have trained a number of students in our professional journey. As we mentioned that we are 3 CAs involved, CA Nitesh, CA Hemant, and including me. And we are, our corporate address is basement plot number 65, that is mainly based in Dwarka, head office, New Delhi. But due to present situation, pandemic situation, we are teaching it online. So this is our website, www.pkcacademy.org. You can visit there and check about the latest courses and sessions. And you can also provide the review of the classes. Yeah. It will help us. So basically, we are providing 3 modules. Latest, we have added module 4 also, where we are teaching advanced Excels. So regarding module, if I talk about Tally, Prime and Accounting, we are teaching updated version of Tally along with the basic concept of accounting. Right from the beginning of accounting, bookkeeping, everything is there, everything we cover. And all the entries, how the journal entries are passed in Tally, how to prepare GST returns, how to prepare TDS returns through Tally, how to maintain cost centers, how to maintain stock, inventory, payroll processing is also there, and how to prepare financials through Tally. So all these things are covered under module 1, Tally, Prime and Accounting. And the fees for this module, we have kept it only 10,000 rupees. And the duration of this module is 3 months. If I talk about module 2, that is about income tax and TDS and TCS. इस मॉड्यूल में बेसिकली हम इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ाते हैं. एक्ट के बाद फिर हम टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल होती हैं, टीसीएस रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, इनकम टैक्स के फॉर्म्स है 1 to 7 वो कैसे फाइल करते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में बताते हैं. किस तरह से कंपटीशन होती है, किस तरह से फाइलिंग होती है. तो हमारा कोर्स बाकी कोर्सेज से डिफरेंट क्यों है? बिकॉज वी आर अ टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड वी टेल देम हाउ टू प्लान टैक्सेस of individual and corporates. So tax planning is also there, and we are using many softwares also which can save our time and efforts. So all these things are covered under income tax module. Duration of this module is 1.5 months only, 1.5 months, and the fees for this module is 10,000 rupees. And regarding module 3, if we talk about, that is about GST. As you know, there are a number of amendments which come on daily basis in GST. It's very difficult to track all of them. So basically, we are providing you updated material, updated GST acts, updated training, how to prepare reconciliations, how to prepare e-way bills, how to prepare annual return, how to do GST audits. All these things we are covering in GST, and how to file GST returns also using different softwares. So these are the things we have covered in GST module, and we are providing it for 10,000 rupees only. So overall, if you see, the total is 30,000 rupees for module 1, 2 and 3. But if anyone takes combo of these 3 modules, if anyone is interested to join module 1, 2 and 3 together, then we have a special price of rupees 25,000 only. And since you are our special members,
you have joined our first advanced tele course. So we are offering a referral bonus also. So in case if you refer anyone this course to any of your friends and relatives, we are providing you a referral bonus of 10%. So total fees is 25,000. 10% bonus will be given to the person who is referring these modules to their friends and relatives. So as I mentioned, duration of this course is module 1 is for 3 months, module 2 is 1.5 months, and module 3 is 1.5 months. Timings is early morning batches are there, evening batches are there. As I just mentioned, we are providing training it online these days. And when the pandemic situation is over and when new normal comes, then हम उन्हें CA फॉर्म में ही अपने जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे. और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी ट्रेनीज आ रहे हैं वो सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड से होने चाहिए. अगर किसी और बैकग्राउंड से भी है तो वी आर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा क्लासेस टू देम. So as I mentioned, combo offer is 25,000 only, and we will be offering 10% referral bonus to the person who is referring these modules to anyone. Eligibility, there is no age bar. Any learner can come, join, and learn and grow. And extra facility we are providing. Suppose anyone takes our courses, any course, module 1, 2, and 3. Suppose if he joins any job in any company or any industry, और उन्हें अपनी जॉब में कोई भी इश्यूज आते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प एवरीवन. आप किसी भी से सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली ऑल योर प्रॉब्लम्स. तो दिस इज द यूएसपी ऑफ टीकेसी एकेडमी कि हम कोर्स के साथ नहीं है, कोर्स के बाद भी जब आप जॉब ज्वाइन कर लेंगे. So this is our vision and mission and practical approach. I have already told you कि हम theoretical के साथ साथ practical exposure भी दे रहे हैं. You can say it on the job training because we are teaching you in real time environment, real life environment. So this is all about TKC Academy. We visit our website for this. This is our website www.tkcacademy.org. There are different courses available. As I mentioned, we have added new course also, advanced Excel. So this is there. दिख रही है जिसमें आपने वेबसाइट खोली है. Sorry, sir. आपने वेबसाइट खोली है वो नहीं दिख रही है. Okay, so it's okay. You can visit our website tkcacademy.org, and you will get all the brochure, all the courses, and latest update about the coming courses. And you may contact us since you have our contact numbers. We have formed a WhatsApp group, so anyone who is interested, they can inform this in WhatsApp group also. And if I talk about today's topic and today's speaker, so today's topic is inventory management, which is very important in case of manufacturing company and trading company. So maintaining payroll is itself a difficult task. So today CA Nitish Kumar will be teaching us how to maintain inventory and stock in Tele, how to keep record of all these things. If I talk about his qualification, he is MCom, graduate from Delhi University. He's a chartered accountant, which qualified 3 years back, and he has teaching experience of around 10 years. And he has since then he is engaged in CA firm. He has practical exposure of all these things which he is going to teach us today. So let's welcome CA Nitish Kumar. Over to you. Thank you Silpa, thank you so much. तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो स्टॉक डिटेल्स है इन्वेंट्री इन द टैली. तो नॉर्मली जो हमारे पास आज जो टॉपिक है स्टॉक से रिलेटेड, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सर एक बार. अच्छा ओके. तो स्टॉक की डिटेल्स और इन्वेंटरी मैनेजमेंट. तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने अगर मेरी जो जीएसटी क्लास देखी होगी तो वहाँ पे इसके बहुत सारे पार्ट्स मैंने ऑलरेडी वहाँ पे कवर कर दिए हैं जीएसटी में. बट ड्यू टू कि आज जो क्लास है स्टॉक मेंटेनेंस का है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट का है, तो मुझे वो सेम चीज़ रिपीट करना होगा. और हम स्टार्ट करते हैं कि क्लासेस कहाँ से कहाँ तक जानी है.
ठीक है, तो आज की जो स्पेशल चीजें हैं मैं बता दूं। हमारी क्लास, आज की जो क्लास में है, जैसे कि पिछली बार एडवांसेस पे जीएसटी और आरसीएम पे जीएसटी था, जस्ट लाइक अभी बिल ऑफ मटेरियल है, मैन्युफैक्चरिंग एंट्री है, रीऑर्डर लेवल है और रीऑर्डर क्वांटिटी भी है आज की क्लास में। तो वो एट द लास्ट में बताऊंगा। और आज की क्लास है वो सॉफ्ट सा ही क्लास है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत मतलब इजी वे में बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आपको आता है। 1 मिनट देना आप मुझे। तो सॉरी, मैं ये कह रहा था कि बहुत सी चीजें आज की क्लास में जो आप लोगों को बहुत इजी लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने जीएसटी में कर लिया है। बट स्पेशल क्लास आज का जो मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करानी है मुझे, वो है रीऑर्डर क्वांटिटी एंड रीऑर्डर लेवल चेक करना है। एंड जो स्टॉक की जो सप्री हम चेक करते हैं, इन आउटवर्ड जीपी रेशियो चेक करना, कौन से कितना जो हम प्रोडक्शन एंट्री करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करेंगे, तो उसके अंदर चेक करना, बिल ऑफ मटेरियल बनाना, शॉर्ट में बॉम्ब बनाना कहते हैं। बिल ऑफ मटेरियल बनाना कि एक प्रोडक्ट से, अगर एक प्रोडक्ट 10 आइटम से बन रहा है तो उसकी एंट्री कैसे होगा, तो वो चीज बताया जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले इन बेसिक चीज से। जस्ट लाइक मैंने लास्ट क्लास में किया था, मैंने पहले स्क्रीनशॉट ले रखा था, देन मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था। सेम सेम वे ऑफ क्लास आज भी सेम ही रहेगा। मैं आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा अपना, और देन मैं स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिकल ऑन टैली। सो सबसे पहले वही चीज जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमें स्टॉक क्रिएट करना है। सबसे पहले स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। अगर मैं आपको स्टॉक मेंटेनेंस टैली दिखाऊं तो स्टॉक आइटम क्रिएट करके दिखाऊंगा, स्टॉक लेजर क्रिएट करूंगा, ग्रुप्स बनाऊंगा, गोडाउंस बनाएंगे, यूनिट्स बनाया जाएगा। सो एक एक चीज मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोग जो यहाँ पे हम स्टॉक कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक का आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। स्टॉक क्रिएट अब आई थिंक पिछले 4-5 क्लासेस से हम कर रहे हैं, तो इजी वे में अब लोग अब चीजें आ चुकी होंगी आप लोगों को। तो सबसे पहले गेटवे और टैली पे हमारे पास एक ऑल्टर का कॉलम होता है या क्रिएट का कॉलम होता है। अगर आपने ऑलरेडी बना रखा है तो ऑल्टर करके हम उसमें चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज क्रिएट, ऊपर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे कर्सर है, वहां पे जाकर के आप क्रिएट करेंगे और सेकंड आपका जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे आएगा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम जैसे ही आप लोगों का आएगा, ओके, स्टॉक आइटम आएगा, देन स्टॉक आइटम पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे देन हमारा ये विंडो ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी क्या, ओके, ये क्रिएट होने के बाद यहाँ पे दूसरा मेथड मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप यहाँ पे गो टू लिखा हुआ है, इस गो टू पे आप क्लिक करेंगे। गो टू पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास आएगा क्रिएट मास्टर्स करके, उस पर क्लिक करेंगे। क्रिएट करते के बाद स्टॉक आइटम पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाने के बाद आप एंटर करेंगे। तो मतलब दोनों मेथड सेम तरीका है। आप या तो पहला जो मेथड मैंने आपको बताया यहाँ पे क्रिएट के अंदर जाइए, या सेकंड मेथड है गो टू से जाइए। तो उसके बाद आपके पास कौन सा स्क्रीन खुलेगा, ये स्क्रीन खुलेगा। आप यहाँ पे ओके, आप यहाँ पे उन आइटम्स के नाम के अकॉर्डिंग बनाना क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे कि कौन सी आइटम आपको क्रिएट करना है और कौन से आइटम से कौन सी मैन्युफैक्चरिंग एंट्री होनी है। सो आप यहाँ पे नाम जो नेम के कॉलम में उस आइटम का नाम लिखेंगे, देन उसको जो कैटेगरी है, किस कैटेगरी में डालना है हमें, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, डब्ल्यूआईपी के फेस में डालना है, तो ये प्राइमरी कॉलम में सिलेक्ट किया जाएगा। देन आपका आता है यहाँ पे यूनिट्स। यूनिट्स अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, यूनिट्स मीन्स क्या होता है कि केजी में बना रहे हैं या पैकेट्स में बना रहे हैं, या नंबर्स में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, किलोमीटर में आ रहा है, ग्राम में आ रहा है, तो वो चीजें हमें यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट करना होता है। एज यूजुअल मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल है, सेट करते हैं उसके जीएसटी टाइप, उस पर यस क्लिक करते हैं तो बहुत सारे रेट आ जाते हैं, एचएसएन कोड आ जाते हैं, वो सारी चीजें आपको आज क्लास में दिखेंगे। अच्छा, जैसे कि अब मैं यहाँ पे मैंने बनाया बैक नेट। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने बैक नेट, पहले मैं बता दूं कि आज मेरा क्लास में जो बिल ऑफ मटेरियल है मैं उसको दिखा देता हूँ कि एक वो जो उसने मैंने उस लास्ट क्लास में मैंने लिया था, माइकमैन का एग्जाम्पल लिया था। इट इज अ काइंड ऑफ परफ्यूम। तो वो बनता कैसे है उसका मैंने क्वांटिटी इसमें अटैच कर रखा है। एक इसके मैं नीचे चलाता हूँ थोड़ा सा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा स्टॉक आइटम। ये रहा यहाँ पे, जैसे जो मैंने आपको लोग एग्जांपल दिया था लास्ट जीएसटी क्लासेस में, तो मैं नॉर्मली माइकमैन की बात कर रहा था, माइकमैन मीडियम, माइकमैन स्मॉल। उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने जीएसटी की सारी क्लास आपको समझाया था। जीएसटी R1 क्रिएट करना, जीएसटी 3 भी क्रिएट करना, जेसन फाइल जनरेट करना,
एडवांस की एंट्री, तो उन सब में मैंने नॉर्मली इसका एग्जांपल लिया था माइक्रोमेट मीडिया। तो अब मैं बताता हूँ ये बनाते कैसे। ये माइक्रोमेट मीडिया बनाने के लिए जैसे इसके अंदर फ्रंट साइड, अब इसके अंदर दो कैप है, एक बैक कैप है जहाँ मेरा कर्सर बैक साइड है एंड फ्रंट साइड है। देन आता है कि बेस लेवल, एक बेस लेवल नीचे जो मेरा जहाँ पे भी कर्सर वो बेस लेवल कहा जाता है। देन बैक नेट, ये जो इसके अंदर एक व्हाइट सा आप देख रहे होंगे ग्रे कलर का, वो नेट लगा हुआ है, ठीक है। देन इसके साथ जब भी बेचा जाता है कि इंस्ट्रक्शन किट जाता है हाउ टू यूज का। तो मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या लगता है, फ्रंट साइड का जो नेट फ्रंट लगेगा इसको बोलते हैं। देन बैक साइड, बेस लेवल, बॉक्स, इसको जब पैक करके दिया जाएगा तो बॉक्स भी लगेगा, तो एक नंबर बॉक्स लगेंगे। स्टिकर चिपकाया जाता है इसके ऊपर, जिस कंपनी का एमआरपी है वो स्टिकर कितने चाहिए होंगे तो एक स्टिकर लगेंगे। बॉक्स के ऊपर स्टिकर की बात कर रहा हूँ मैं। एमआरपी स्टिकर भी चिपकाया जाता है। पेपर, जैसे कि अगर इसके ऊपर बॉक्स बनाया जाता है तो उस बॉक्स को मतलब जस्ट मैं अभी आप लोगों को आइडिया क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं अभी करने क्या वाला हूँ। मैं अभी आइटम भी क्रिएट करूंगा, तो मैं ये वाले आइटम क्रिएट करूंगा अंडर द रॉ हेडर, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ ये सारे रॉ मटेरियल्स। क्यों? क्योंकि मैं आपसे पहले रॉ मटेरियल क्रिएट करता जाऊंगा धीरे धीरे धीरे, देन उसी रॉ मटेरियल से मैं क्रिएट करूंगा, जो स्टॉक आइटम क्रिएट करूंगा उसी से मैं बिल ऑफ मटेरियल बनाऊंगा और मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करूंगा, ठीक है। तो ये जो आप राइट हैंड साइड में ब्लैक कलर का माइक देख रहे हैं, ये एक परफ्यूम है माइक, जो कि कार वगैरह में यूज किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको पेपर भी चाहिए होता है 20 पीस का, और जेल चाहिए 100 ग्राम जेल चाहिए इसके अंदर, तभी तो फ्रेगनेंस आएगी। ओके, तो इस तरीके का आगे हम करेंगे। तो अब जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाने जा रहा हूँ, सो अब मैं दोबारा से स्टॉक आइटम पहुंचा कि मैंने स्टॉक आइटम जो मैंने बनाया था, यहाँ पे अब आप देखेंगे ब्लैक नेट, फ्रंट नेट जो मैंने बनाया था वो किस लिए बनाया है और आपके सामने ही बनाऊंगा, ताकि आप यूज टू हो जाए कि मैं करने क्या जा रहा हूँ आज। तो वैसे ब्लैक नेट बनाऊंगा, ब्लैक नेट को सिलेक्ट करूंगा, अंडर दैट रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बाद जो हमारे पास है रॉ मटेरियल के अंदर सेलेक्ट करूंगा, देन उसकी यूनिट आईडी सेलेक्ट करूंगा। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ आपके अब टैली पे आ जाता हूँ कि करने क्या वाला हूँ मैं, ठीक है। देन स्टॉक आइटम बनाने के बाद मैं स्टॉक ग्रुप बनाऊंगा, लोकेशंस बनाऊंगा, गोडाउंस बनाऊंगा। देन नॉर्मल काम जो मैं हमारे पास क्या बोलते हैं, मैं कुछ जो रॉ मटेरियल उसको परचेज भी करूंगा ताकि मेरे स्टॉक में आ जाए। स्टॉक करने के बाद फिर मैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करके फाइनल गुड्स बनाऊंगा और देन मैं उसको बेचूंगा। बेचने के बाद मेरे पास होगा रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर भी दिखाऊंगा कि मेरे पास आज कितनी क्वांटिटी है तो मैं कितना ऑर्डर कर दूं या कितना ऑर्डर हमें करना चाहिए, वो सारी चीजें दिखाऊंगा। देन एट द एंड में मैं समरी दिखाऊंगा कि स्टॉक की समरी कैसे चेक करते हैं, परसेंटेज लगा के कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ प्रैक्टिकल पे, सीधा मैं टैली ओपन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं नाम इसलिए इसी तरीके से डाल देता हूँ ताकि मुझे फ्यूचर में याद रहे कि मैंने कौन सी क्लास में कौन सा डाटा बना के दिखाया था। तो नॉर्मली मैं ऐसे ही नाम डालता हूँ याद रखने के लिए। तो यहाँ पे हम फटाफट से जो चीजें हम ये चीजें क्रिएट कर लेते हैं, बाकी चीजें कंपलसरी नहीं है। जब जो चीज कंपलसरी होगी हम उसे चेंज करके क्रिएट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये यहाँ पे अपनी कंपनी क्रिएट कर दी। कंपनी क्रिएट करते ही सबसे पहले हमारे पास आएगा, यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्रिएट पे जाते मेरे पास स्टॉक आइटम आएगा। स्टॉक आइटम पे जाऊंगा और मैंने यहाँ पे भी सिलेक्ट किया था बेस फ्रंट साइड, मैंने ये सिलेक्ट किया था फ्रंट साइड, मेरा उस माइक्रोवेव का फ्रंट पार्ट था, उसको मैंने सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करूंगा मैं, प्राइमरी मेरा रॉ मटेरियल का लेजर नहीं बना हुआ, या तो मैं सबसे पहले बाहर जाऊं, यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में जाऊं और यहाँ पे मैं रॉ मटेरियल क्रिएट करूं। और सेव करके बाहर आ जाऊं। वैसे मैं फिनिश गुड्स सिलेक्ट करूंगा, फिनिश गुड्स, देन WIP बनाऊंगा मैं। ये मेरे स्टॉक ग्रुप्स रेडी हो गए।
अब अगर आप देखना चाहेंगे स्टॉक ग्रुप मेरे पास कौन कौन से है, तो मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर के देख सकता हूँ मेरा स्टॉक ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो स्टॉक ग्रुप के अंदर मेरा रॉ मटेरियल आ चुका है, बिस्कुट्स आ चुका है, WIP आ चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर पे मैं क्या क्रिएट करने जा रहा हूँ, मैं अब क्रिएट करूंगा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम जो होंगे सब अभी जो मैंने आपको दिखाया था, माइक पेन बनाने के लिए मुझे फ्रंट साइड चाहिए, अंडर दैट रॉ मटेरियल मैं लूंगा इसको। देन यहाँ पे यूनिट्स आता है। यूनिट्स मींस की जो फ्रंट साइड जो मैं परचेज करके लाऊंगा वो मुझे कैसे मिलेगा, मतलब इसका काउंट कैसा होगा, ग्राम में मिलेगा, नंबर से मिलेंगे, पीसेस में मिलेंगे, बॉक्सेस में मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। या एक चीज और है, या तो मैं पहले इसके अंदर मैं यहीं से ऑल्ट सी करके मैं क्रिएट करना स्टार्ट कर दूं, या बाहर जाकर के मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको सीधे यहाँ पे क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, यहीं से मैं बाहर जाके क्रिएट नहीं कर रहा, एक मैं यहीं से क्रिएट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो जो फ्रंट साइड मुझे परचेज करना है उसको नंबर्स में काउंट होगा वो, या उसको यूनिट ऑफ मेजर नंबर्स में होगा। और HSN कोड जनरेट करने के लिए आपको ये सिलेक्ट करना कंपलसरी है। कल को आप जब GST टैली जो GST रिटर्न्स है अगर आप टैली से ही जनरेट करने वाले हैं तो आपको ये नंबर्स, ये जो मैंने अभी यहाँ पे UQC डाला है, which is mandatory from the April 2021 if your turnover is less than 5 CR, then on the B2B सप्लाई पे आपको 4 डिजिट का HSN कोड डालना कंपलसरी है। तो अगर 5 करोड़ से ऊपर टर्न 6 डिजिट का कोड आपको HSN कोड डालना कंपलसरी है। इन शॉर्ट अब आपको HSN कोड डालना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप B2B बिल पे डाल सकते हो तो B2C पे भी तो भी डाल ही सकते हो, क्योंकि हमें लेजर में तो चेंज करना है। एक बार जब हम आइटम क्रिएट करें वहां पे हमें HSN कोड डाल देना है, नंबर्स डाल देने हैं। तो इन चीजों से आपका जो GST कंप्लायंसेस है वो भी कंप्लीट होता चला जाएगा। सो मैंने यहाँ पे बनाया फ्रंट साइड दिया है मैंने, अंडर द रॉ मटेरियल इसके मेजर्स कैसे होंगे, नंबर से मेजर्स करेंगे हम इन्हें। ठीक है, देन आता है GST, क्या इसके ऊपर GST एप्लीकेबल है? यस, फ्रंट साइड पे यस एप्लीकेबल है। मैं यहाँ पे सेट यस करूंगा, वही मैं फ्रंट साइड का नाम दूंगा कि फ्रंट साइड है। डिस्क्रिप्शन में HSN कोड मैं 8843 डालूंगा। क्या ये इसके ऊपर GST लगने वाला है? यस लगेगा। टैक्सेबल में सिलेक्ट करूंगा इसको। ये ऑलरेडी ये चीजें मैंने डिटेल में लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, इसलिए मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ऑलरेडी बताया आप लोगों को। ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे मैं कंट्रोल A करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लूंगा और ये सेव हो गया। उसके बाद अगर आपके पास ओपनिंग में कुछ क्वांटिटी बचे हुए हैं फ्रंट साइड के, अब सपोज करो फर्स्ट टाइम बने हो और उस हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़े हैं बट टैली में एंट्री करने जा रहा हो, या ईयर जब कुछ कंपनी क्या होती है, कुछ क्लाइंट्स क्या करते हैं हर एक ईयर में अपनी टैली सेपरेट कर लेते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे ओपनिंग फिगर भी डाल सकते हो कि मेरी ओपनिंग में कितनी फिगर्स थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 100 लेकर चल देता हूँ, 100 है यहाँ पे और ये 10 रुपए का एक है और ये वैल्यू मेरी ओपनिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोल A करके निकल जाता हूँ बाहर। सो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि यहाँ पे स्टॉक ग्रुप मैंने दिखाया आप लोगों को, स्टॉक अकाउंट्स बनाएगा तो दो चीजें क्रिएट हो चुकी हैं, एक स्टॉक ग्रुप और WIP। ठीक है, देन अब मैं अगर आपको आइटम में दिखाऊंगा, यहाँ पे मेरे स्टॉक आइटम में क्या क्रिएट हो चुके थे, स्टॉक आइटम में देखिए फ्रंट साइड मैंने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, अगर आप लोगों को यूनिट्स क्रिएट करना हो डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली आप यहाँ से यूनिट्स क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट में जाइए, स्टॉक ग्रुप हमने यहाँ से क्रिएट किया था, स्टॉक ग्रुप से स्टॉक आइटम हमने यहाँ से क्रिएट किया था, अब हम यहाँ से यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। यूनिट क्रिएट करने के लिए मैंने नंबर्स तो क्रिएट कर दिया है, मैं पीसेस क्रिएट कर लेता हूँ। अगर मुझे कुछ सामान पीस में मिलते हो, 1 पीस 2 पीस 10 पीस में, तो मैं यहाँ पे ये पीसेस सिलेक्ट कर लूंगा, देन इसकी पूरी स्पेलिंग जो होगी वो लिख दूंगा। देन आपका यहाँ पे पीसेस का जो होगा ये आ रहा है मेरे पास पीस का, ये सिलेक्ट किया जाएगा। एक मिनट, तो मेरा जो अब यहाँ पे यूनिट मैंने यूनिट्स बना दिए हैं। अब कुछ मुझे जो फ्रेगनेंस होंगे जेल में लेके परचेज करने जाऊंगा, ग्राम या केजी में, तो मैं ग्राम भी बना देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ग्राम का कर लेंगे। अगर मुझे केजी का बनाना हो तो मैं केजी का भी बना सकता हूँ।
बॉक्सेस भी बना सकते हैं। सामान अगर बॉक्स में परचेज होकर के आएंगे तो मैं बॉक्सेस बना लेता हूँ। तो अब आप देखेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अगर आप देखेंगे तो मेरे पास जो लेजर्स है, स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक ग्रुप में मेरे पास ये ऑलरेडी बन चुका है। यूनिट्स में मेरे पास ये इतने सारे मैंने यूनिट्स क्रिएट कर लिए। अब मैं वन वन करके स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखाया था, जो कि मुझे माइक में क्रिएट करने के लिए चाहिए। स्टॉक आइटम मैंने फ्रंट साइड बना दिया था, अब मेरी बारी है बैक साइड बनाने की। इसके अंदर में बैक साइड भी अंडर द हेड रॉ मटेरियल में लूंगा, और इसको भी मैं किस में लूंगा, आप बॉक्सेस में आ रहे हैं, ग्राम में आ रहे हैं, केजी में आ रहे हैं, नंबर्स में आ रहे हैं, पीसेस में आ रहे हैं, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर्स में सेलेक्ट करूंगा क्योंकि इसकी जो परचेज की जाती है नंबर्स में। फिर से सेम चीज, ये सारे क्लिक करूंगा और ये टैक्सेबल हो जाएगा मेरा 18%, अंडर दैट 18% में आ जाएगा। कंट्रोल ए सेव कर लूंगा। देन मेरे पास क्या था, नेट था। नेट नेट मतलब जाली, ग्रे कलर का जो जाली था वो मैं क्रिएट करूंगा, रॉ मटेरियल में ही आएगा। ठीक है, नंबर्स में ही लेंगे हम इसको। देन ये जीएसटी इसमें करूंगा। अच्छा, मैं अभी ये जीएसटी डिटेल क्यों अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मुझे आगे इन गुड्स को परचेज करना है। परचेज करने के लिए मुझे जीएसटी डिटेल्स बनानी पड़ेगी, डालना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वहां पे वो सीजीएसटी रजिस्टर उठा पाएगा, तो देन प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं ये जीएसटी की डिटेल्स इसके अंदर अपडेट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी फास्ट करके निकल जाता। सो नेट आ जाएगा यहाँ पे 8843, क्लिक कर लूंगा, इसे टैक्सेबल लेंगे और रेट 18% लेंगे। कंट्रोल ए से। देन था लोअर बेस। लोअर बेस फ्रंट साइड बना दिया, बैक साइड बना दिया मैंने। बेस लेवल, बेस लेवल बना देता हूँ मैं, ये मेरा बेस लेवल है। इसके अंदर आता है दिस इज मटेरियल, इसको भी मैं नंबर्स में परचेज करूंगा। यस, जीएसटी को इनेबल करूंगा 8843। इसके अंदर मैं इसे टैक्सेबल सेलेक्ट करूंगा और ये 18% हो जाएगा। इसके अंदर फिर से मुझे क्या नेट मैंने क्रिएट कर लिया था, इंस्ट्रक्शन किट, बॉक्सेस, स्टिकर, ये सारे आइटम मुझे क्या करके क्रिएट करने पड़ेंगे। मैं फटाफट कर लेता हूँ। इंस्ट्रक्शन किट, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। देन आता है बॉक्स। बॉक्स पैकिंग बॉक्स होगा, पैकिंग बॉक्स से नाम से जाना जाएगा ये। और पैकिंग बॉक्स मुझे टैक्सेबल वैल्यू 18% टैक्सेबल किया जाएगा। बॉक्स के बाद आता है स्टिकर। स्टिकर जो उसके ऊपर चिपकाया जाता है, जिसका कंपनी का नाम लिखा होता है, वो भी चाहिए होगा। अच्छा, ये जो आप ये बिल ऑफ मटेरियल है, ये अकाउंट, ये जो चीज है ये पता होता है कंपनी के प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनको पता है कि एक लोगों को ये चीजें जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है, प्रोडक्शन कंसर्न पर्सन होता है, वो उससे पता चलेगा आप लोगों को कि इसको बनाने में क्या चाहिए होता है। ये बॉम्ब जो होता है, बिल ऑफ मटेरियल आपको वन टाइम टेलीमेट करना होता है। उसके बाद जैसे ही नीचे प्रोडक्शन
ये बनेगा, आपको लिखना है कि पूरे दिन में 100 एंट्री बनाए, 100 बनाई गई है, 500 बनाई गई है, और वो ऑटोमेटिक 100 ये वाला बाइक में रेडी हो जाएगा, और ये फ्रंट साइड उसके अकॉर्डिंगली कम होते चले जाएंगे हमारे रॉ मटेरियल से। वो चीज भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेरा स्टॉक जो कम हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो स्टिकर पे देन अगेन मेरे पास है एमआरपी स्टिकर। रॉ मटेरियल में आ जाएंगे, एमआरपी स्टिकर में पीसेस में ले लेते हैं, पीसेस में कैलकुलेट होगा। यस 8843, मैंने HSM कोड सबका 8843 अपने याद रखने के लिए डाला हुआ है। इसके जो रेट ऑफ GST है माइट भी डिफर कर सकते हैं एक्चुअल के। देन आप पेपर जो मुझे चाहिए होंगे रॉ मटेरियल्स में, ये मुझे पीसेस में चाहिए। यस मुझे पीसेस में चाहिए, मैं पीसेस में ले लेता हूँ। तो अब हम आते हैं जेल, फ्रेगनेंस जिसे कहते हैं, ये जेल चाहिए मुझे। इसके अंदर जो माइक के अंदर आपको मेरा कर्सर है, इस माइक के अंदर पूरा पूरा जेल भरा हुआ है जिससे फ्रेगनेंस आती है। तो जेल है, जेल को भी मैं रॉ मटेरियल में लेता हूँ, और देन इसको मैं परचेज करता हूँ किलोग्राम में ग्राम। ठीक है, तो इसलिए मैंने यूनिट से ग्राम सेलेक्ट किया हुआ है। इसका जो रेट ऑफ टैक्सेस है नॉर्मली 28% में होता है, तो मैं इसको 28% सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप लोग बाहर आकर के देख सकते हैं कि आप लोगों के पास कितने अकाउंट्स हैं। आप आइए चार्ट ऑफ अकाउंट में, चार्ट ऑफ अकाउंट में आप क्लिक कीजिए स्टॉक आइटम के ऊपर, आप देखेंगे। ओके, मैंने फिनिश बॉक्स को आप देख पा रहे हैं, मैंने फिनिश गुड्स को मैंने बॉक्स के अंदर में डाल दिया है, जो कि गलती हो गया है, इसको मैं चेंज करके रॉ मटेरियल ले लूंगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं रॉ मटेरियल के अंदर में मैंने स्टॉक आइटम कर लिया है। ठीक है, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट्स मैंने उस टाइम क्रिएट कर लिया था। देन अब आता है मेरे पास जो मैंने अभी गलती करी, उसमें ठीक कर लेता हूँ, ऑल्टर करके देखता हूँ कि मैंने जो स्टॉक आइटम बॉक्स बनाया था ये वाला, ठीक है, इसको मैंने फिनिश गुड्स में रखा है, तो इसको मुझे रॉ मटेरियल में करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल ए, अब ये सेव हो गया। सो अब मैंने जो सिंपल यहाँ पे जो चीजें हैं, अपार्ट फ्रॉम मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ कि इसमें जस्ट एक फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं लोकेशन भी क्रिएट कर लेता हूँ कि जैसे कि हमारे ऑफिस में क्या होता है, मतलब कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट होता है, गोडाउन होते हैं, तो मैं यहाँ पे एक स्टोर डिपार्टमेंट मेन लोकेशन में ही रहेगा हमारे पास। एड्रेस जहाँ का आपका ऑफिस का एड्रेस है वो डाल दीजिए। इसी में आपका स्टोर डिपार्टमेंट नीचे है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस डिपार्टमेंट टॉप फ्लोर पे बैठ के आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे यस नो भी कर सकते हैं, क्या आपका स्टोर जो आपका स्टॉक है क्या किसी थर्ड पार्टी के पास लाइन करता है, तो आप इस पे यस कर दीजिए। क्या थर्ड पार्टी का स्टॉक आपके पास लाइन करता है, तो आप इस पे यस कर सकते हैं। तो इससे आप जब स्टोर डिपार्टमेंट खोल के देखेंगे, स्टोर डिपार्टमेंट आपको दिखेगा कि फिनिश गुड्स में कितने गुड्स आपके हैं कितने किसके हैं, वो आपको सेपरेटली दिखाई देगा। तो मैंने एक स्टोर डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिया है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिया है। एड्रेस मैं द्वारका ही डाल देता हूँ, द्वारका फर्स्ट। सो देंगे हमारे पास इन्वेंट मास्टर से रिलेटेड जितने भी आइटम है मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिए सारे ग्रुप्स, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। आइटम्स ऑलरेडी देख चुके हैं। ये देखेंगे मेरे पास जो बॉक्स था, जो आप बॉक्स देखेंगे, बॉक्स पहले फिनिश गुड्स में था गलती से, अब मैंने उसको ठीक करके यहाँ पे डाल दिया है। देन आप लोग देखेंगे स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी में ऐसे मैं डाल सकता हूँ कि माइक्रोन की 4 चीजें बना दूँ, तो मैं स्मॉल माइक्रो मीडियम माइक्रो लार्ज ऐसे करके तो मैं इस पर कैटेगरी बना सकता हूँ। या जैसे आप लोग देख सकते हैं कि आपको एसी परचेज कर रहे हैं, सपोज करिए एग्जांपल के लिए एसी परचेज कर रहे हैं या टीवी परचेज कर रहे हैं, तो टीवी के वेरियस मैन्युफैक्चरर होते हैं, एलजी के होते हैं, कुछ एप्पल के होते हैं,
तो ऐसे ऐसी चीजें, जैसे फोन देख लीजिए, एप्पल के होते हैं, सैमसंग के होते हैं, एमआई के होते हैं, तो कैटेगरीज वाइज हम कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट्स मैंने बना दिया था ऑलरेडी, अब लोकेशन भी मेरे पास 2 लोकेशन आ चुकी। ठीक है, सो मेरा जो पीपीटी का पार्ट है यहाँ तक का, अब आप देखेंगे कि मैंने स्टॉक ग्रुप तक बना दिए थे, रॉ मटेरियल वगैरह हमने सब कुछ कर लिए हैं, रॉ मटेरियल के अंडर गुड्स में बना दिया हमने, क्रिएट मैंने यूनिट भी क्रिएट कर लिया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है और स्क्रीनशॉट भी लगा दिया आप लोगों को हेल्प करने के लिए कि आप लोग जब ये क्रिएट करना हो तो क्रिएट भी कर सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये सारी स्क्रीनशॉट उन्हीं की है, क्रिएशन के, आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जीएसटी का है कि अगर आप जीएसटी इनेबल करना चाहते हैं तो जीएसटी के लिए क्या करना पड़ेगा, यस क्लिक करके, जो मैंने बार बार वो जो चीजें किए हैं वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा दी। बैक नेट चाहिए, देन आता है आपका, अच्छा ये अब मुझे माइकमैन का फिनिश गुड्स भी तो चाहिए होगा बनाने के लिए, तो मुझे एक आइटम जो है माइकमैन का भी क्रिएट करना पड़ेगा स्टॉक आइटम में। माइकमैन मीडियम ले लेता हूँ मैं, अंडर जिसको फिनिश गुड्स में लूंगा, ये एज ए मैं नंबर ऑफ नंबर्स में लूंगा। देन अप्लीकेबल है, यस, क्या इसके ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल होगा, बिल्कुल। कितना रेट होगा, 18% में नॉर्मली फॉल करता है, तो मैं 18% सेलेक्ट करके यस करके बंद कर दूंगा। मैं एक और फिनिश गुड्स में माइक मैंने स्मॉल कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने दो जो बॉम्ब लिए हैं, मैंने बिल ऑफ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग आइटम 2 लिए हैं, स्मॉल का लिया और मीडियम का लिया है, तो मैं दोनों करके दिखाऊंगा आपको। तो मैं इसको फिनिश गुड्स में ले लेता हूँ, यस क्लिक करते हैं और यहाँ पे लेते हैं हम, यहाँ पे HSN कोड 8843, इट इज, ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, और देन उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स क्या हो जाएगा, 18%। तो मैंने यहाँ पे ये सारे इन्वेंटरी मास्टर्स के पार्ट अब मैंने करा दिए हैं, काफी बेसिक है ये चीजें, आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा ये चीजें, बट जो मुझे मेन चीज है, मुझे बिल ऑफ मटेरियल कराना आज के लिए, तो बिल ऑफ मटेरियल कराने के लिए मुझे ये कराना बहुत जरूरी था। सो मैंने ये सारी चीजें बना दिया है। अब मेरे पास आइटम भी है, ग्रुप्स भी है, अब मेरे पास क्या करना है, मुझे अब चीजें परचेज करनी है, ताकि मैं रॉ मटेरियल परचेज करूंगा, देन ही तभी तो मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब आप लोगों के सामने जो परचेज की एंट्री है वो क्रिएट करूंगा, ये सारी स्क्रीनशॉट वही है, यूनिट्स बनाने के स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं मैंने इसके ऊपर। के अंदर एक कंपाउंड भी आता है, आप एक कंपाउंड यूनिट भी क्रिएट कर सकते हो। कंपाउंड यूनिट आप कंपाउंड पे बैक स्पेस मारिएगा, बैक स्पेस आपको कंपाउंड आएगा, इसके अंदर ये हो सकता है कि आप पहला यूनिट क्या रखना चाहते हैं, तो पहला यूनिट केजी है, केजी 1000 केजी में कितने ग्राम होते हैं वो यहाँ पे ग्राम सेलेक्ट कर लेंगे, तो ऐसे हम कंपाउंड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे कंपाउंड यूनिट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले केजी के यूनिट और ग्राम के यूनिट ऑलरेडी क्रिएटेड होने चाहिए, देन ओनली आप कंपाउंड यूनिट्स क्रिएट कर सकते हो। कंपाउंड यूनिट्स मतलब मोर देन 1 यूनिट्स आप एक में ही क्रिएट कर रहे हो, तो जो छोटे छोटे यूनिट्स है वो आप इसमें पहले क्रिएट करके रख सकते हो। ठीक है, देन ये कंपाउंड एंट्री कर पाओगे। तो मैंने ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसलिए लगाया था, तो आप ये भी चीज देख सकते हैं, आप लोग कंपाउंड एंट्री कंपाउंड यूनिट्स क्रिएट करने का तरीका यहाँ पे है। देन ये क्रिएशन ऑफ गोडाउन मैंने आपको दिखा दिया, लोकेशन मैंने स्टोर डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, वो मैंने आपको दिखा दिया। स्क्रीनशॉट सारे के सारे स्क्रीनशॉट आपको लाइन से लगे हुए हैं कि आप इस स्क्रीन पर जाओगे तो कैसे करना है, क्या करना है, एक एक स्क्रीनशॉट मैंने आपको लगा करके दिए। अब जैसे मैंने दिया गो डाउन मेरा सीपी में है, मैंने सीपी एड्रेस सेलेक्ट कर लिया था, तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ सेम बिल्डिंग में नहीं हो तो अलग अलग हो सकते हैं। अब मेन चीज पे आ जाते हैं हम लोग, हमारा है बिल ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एंट्री। ठीक है, तो उससे पहले मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करने से पहले मैं सबसे पहले क्रिएट करूँ, अब जो मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करने से पहले सबसे पहले मैंने स्टॉक आइटम ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, लेकिन मैंने अब तक स्टॉक आइटम परचेज नहीं किया है, तो सबसे पहले मुझे कुछ आइटम्स परचेज करने लीजिए ताकि मेरे पास स्टॉक में दिखाई दे, और जब मेरे पास स्टॉक में होगा जब भी तो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, स्टॉक परचेज करने होंगे। सो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टॉक परचेज करने जा रहा हूँ। स्टॉक परचेज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे बाउचर में जाऊंगा और एंट्री करना स्टार्ट करूंगा। सो आप लोगों को ये शॉर्टकट पता ही होगा, या तो मैं जो अभी मैंने डेटर्स और क्रेडिटर्स की एंट्री और ना ही परचेज लेजर और ना ही सेल लेजर, मैंने कोई भी एंट्री अभी लेजर्स इसमें क्रिएट नहीं किया है, तो
मैं एंट्री करते करते साथ में क्रिएट कैसे करते हैं ये भी आप लोगों को बता दूंगा। बहुत ही सिंपल, आप लोगों को आता होगा, काफी बेसिक है। बट हमारे इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स, कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनको बेसिक भी चाहिए था, इसलिए इसको मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज से दोबारा बताया है। कुछ नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं लास्ट टू लास्ट क्लासेस से, तो उनके लिए भी मुझे बेसिक कराना बहुत जरूरी था। सो ये बेसिक हो गया और मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे सप्लाई। सपोज करो मैं परचेज करने जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो सप्लाई इनवॉइस नंबर है वो 001 है, वो 2 अप्रैल की डेट की है। F2 करूंगा, यहाँ पे 2 अप्रैल हो गया, देन आगे बढ़ने देगा। ये भी आगे बढ़ने इसलिए नहीं दे रहा था कि यहाँ पे 2 अप्रैल था और यहाँ पे 1 अप्रैल था। तो F2 क्लिक करके आप डेट चेंज कर सकते हो, जो भी आप रखना हो। देन आपको पार्टी, अब देखिए पार्टी मेरे पास कोई भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑल्ट सी करूंगा। क्या करूंगा? ऑल्ट सी करूंगा। ऑल्ट सी करते मैं यहाँ पे पार्टी का नाम बनाऊंगा। मैं यहाँ पे पी फॉर परचेज, इसमें पी एंड कंपनी कर रहा हूँ। क्रेडिटर्स, ये चीजें लास्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया था मैंने कि इन सारे एड्रेस पे, सारी जगह पे एड्रेस प्रॉपर डालना है, पार्टी का प्रॉपर नाम सिलेक्ट करना है, तो दैट आपका जीएसटी इनेबल हो जाए, जीएसटी इनेबल हो जाए और आप लोग जीएसटी इनेबल आपके टैली जनरेट कर सको। ठीक है, तो मैं अब ये शॉर्टकट में बना रहा हूँ। ठीक है, आप हमारे मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा जीएसटी में कि आपका जो जीएसटी की रिटर्न टैली से जनरेट होने के लिए आपके सारे जो लेजर्स हैं वो प्रॉपरली बने हुए होने चाहिए। प्रॉपरली बने हुए मतलब कि आपको यहाँ पे एड्रेस भी डालना है, आपको यहाँ पे स्टेट प्रॉपर चूज करना है, आपको यहाँ पे उसके पैन नंबर भी डालने हैं, आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर डालने हैं, आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करके आपको वो बताना भी है कि ये रेगुलर है, टैक्स पेयर है, अदर टेरिटरी के तो नहीं है, ई कॉमर्स वाले तो नहीं है, जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फास्ट तरीके से करा रहा हूँ आप लोगों को। देन मैंने पी एंड कंपनी से मैंने परचेज कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए मैं परचेज कर रहा हूँ, मैंने अभी तक लेजर भी नहीं बनाया, तो मैं फिर से ऑनलाइन ऑल्ट सी करूंगा। यहाँ पे ऑल्ट सी करके मैं एक परचेज लेजर बना लेता हूँ। परचेज लेजर अंडर द हेड परचेज ले लेता हूँ और कंट्रोल ए यस करके मैं यहाँ से निकल जाता हूँ बाहर। उस दिन भी मैंने बताया था आप लोगों को, परचेज के केस में आपको 2 लेजर बनाने की जरूरत नहीं, एक ही लेजर बनाओ और उसमें इंटरेस्ट दोनों आ जाता है। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे मुझे अब एक एक आइटम परचेज करना है। पहले क्या था, मुझे फ्रंट साइड परचेज करना था, फ्रंट साइड ले लूंगा मैं। लोकेशन, अब देखिए मैं कहाँ पे परचेज कर रहा हूँ, लोकेशन जो मैंने आपसे गोडाउन बनवाया था इसलिए बनवाया था। फ्रंट साइड मेरा कहाँ पे आ जाएगा, स्टोर में आ जाएगा, स्टोर डिपार्टमेंट में आ जाएगा। क्वांटिटी में कितने परचेज कर रहा हूँ, 1000 कर रहा हूँ, ताकि नेगेटिव स्टॉक ना हो जाए मेरा। नहीं 100 लेता हूँ, नेगेटिव स्टॉक भी तो आपको दिखाना है, सिखाना है, तो मैं 100 ही लेता हूँ, नेगेटिव हो जाए तो हो जाए। ठीक है, ये एक का रेट 10 रुपए है, 1000 रुपए मैंने परचेज किया, 1000 ही ले लेता हूँ, कम लगा। ठीक है, देन मैं यहाँ पे बैक साइड जो है बैक साइड परचेज करूंगा। इसको भी लाके मैं कहाँ पे रखूंगा, स्टोर डिपार्टमेंट में रखूंगा। क्वांटिटी कितना, 1000 क्वांटिटी। रेट कितना लेते हैं हम, 10 रुपए ले लेते हैं, मैं जान मुझे राउंडिंग ऑफ में ले रहा हूँ। देन यहाँ पे हमारे पास क्या था, नेट, नेट भी परचेज कर लूंगा। नेट चलो मैं ये मान लेता हूँ, नेट मुझे कोई और से कर देता है, मैं कहीं और से ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 चीजें थी, ये ले लिया मैंने, बैक बैक साइड फ्रंट साइड। मैं बेस लेवल ले लेता हूँ इनसे, सेम बंदे से, स्टोर में ही आएगा मेरे पास डाटा। क्वांटिटी कितनी है मेरे पास, 1000 में परचेज करता हूँ। रेट कितना है बेस लेवल का, ओके। मेरे पास बेस लेवल के बाद था बैक साइड मैंने परचेज कर लिया। फ्रंट साइड इंस्ट्रक्शन किट मैं किसी और पार्टी से लूंगा, एमआरपी स्टिकर भी किसी और से लूंगा, पेपर भी किसी और से लूंगा। चलो, तो मैं केवल इतना दिखाता हूँ कि मैं इनसे केवल 3 आइटम परचेज कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं जस्ट परचेज की एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब मैंने यहाँ पे सीजीएसटी का लेजर भी बना, लास्ट टाइम तो मैंने पहले ही बना लिया था, बट यहाँ पे मैं ऑल्ट सी करूंगा। यहाँ पे आउटपुट टैक्स इनपुट, सॉरी, इनपुट जीएसटी एट द रेट 9%। जीएसटी 9% लेकर के मैं इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लूंगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जीएसटी और सेंट्रल टैक्स है, सेंट्रल से क्लिक करूंगा और 9%। एक तरीके से देखा जाए तो आपकी लास्ट क्लास की रिवीजन भी हो रही है, जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े हैं।
जो लास्ट क्लास इन द सेंस जीएसटी का लास्ट क्लास जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे 9% का इनपुट आ जाएगा। देन मेरे पास यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी 9%, एक रुक जाइएगा। देन मैं एक बार इनपुट आईजीएसटी बना लेता हूँ, एसजीएसटी @ 9%। ये जीएसटी मैंने सारे लेवल्स में जीएसटी लेवल किए थे, स्टॉक में तो आई थिंक जब मैंने कंपनी क्रिएट किया है तो उसमें जीएसटी के लिए मैंने वहाँ पे यस नहीं किया कंपनी मास्टर डाटा में जाकर के। डेट्स वाई यहाँ पे जो जीएसटी का इम्पैक्ट है वो उठा नहीं रहा। आई थिंक जीएसटी में ना जाके हम लोगों को स्टॉक पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है तो मैं स्टॉक पे आ जाता हूँ जैसा आप कह रहे हैं सर। ठीक है, क्योंकि स्टॉक की क्लास तो ऑलरेडी हो चुकी है, मुझे पूरा मास्टर दोबारा बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक हाँ है, वो तो मैं एक काम करता हूँ इसी पे आ जाता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है सर। सो यहाँ पे मैं ये मान करके चलता हूँ कि मैं यहाँ पे जीएसटी का कुछ है ही नहीं। सो 45 तक मैंने सामान उनसे परचेज कर लिया। कंट्रोल है मेरे पास तीन पार्टी से ये तीन चीजें परचेज कर लिया, ठीक है। एक पार्टी से ये 3 आइटम परचेज कर लिया। बाकी मेरे पास अभी और भी चीजें मैं और परचेज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक और कंपनी बना देता हूँ मैं, ए बी। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्रेडिटर्स में लेता हूँ इनको, कंट्रोल है। देन परचेज किया मैंने। मेरे पास क्या क्या बच गया था परचेज करने के लिए? मेरे पास जो परचेज करने के लिए बच गए थे, पेपर, परचेज कर लेता हूँ मैं। पेपर्स क्या पीसेस ले लेता हूँ मैं इसको, 25 रुपीज ले लेता हूँ। देन आता है मेरे पास इंस्ट्रक्शन किट। इंस्ट्रक्शन किट मैंने परचेज नहीं किया था, इंस्ट्रक्शन किट परचेज कर लेता हूँ मैं 1000, 5 रुपए का एक तो ले। देन एमआरपी स्टिकर, एमआरपी स्टिकर। देन स्टिकर भी चाहिए मुझे इसे बनाने के लिए। इंस्ट्रक्शन कितना तो मेन लोकेशन में चला गया है, वो भी स्टोर में आना चाहिए। ओके, तो मैं उसको भी ठीक कर लेता हाँ हूँ। जल्दी अभी जल्दी। मैं बनाने के बाद ना मैं देख लूंगा कि कौन कौन से स्टोर में चला गया, तो वहाँ पे चेक कर लूंगा। हाँ हाँ ओके ओके, थैंक यू। उसके बाद यहाँ पे आता है मैंने स्टिकर परचेज किया, अभी मैं 15 का प्राइस डाल देता हूँ। देन मेरे पास एक रह गया आई थिंक, मैं देख लेता हूँ कौन सा रह गया। बैक साइड ये बना दिया था, बेस लेवल मैंने बना दिया था। बॉक्स बॉक्स रह गया, बॉक्स को मैं अलग से बनाऊंगा। और जेल, जेल और बॉक्स में एक साथ अलग से परचेज करूंगा किसी और थर्ड पार्टी से। जस्ट मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ बनाने के लिए कि हाँ, नॉर्मली मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मैं एक पार्टी से ही परचेज कर लेता मैं, बट मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो, क्योंकि कंपनी में हर चीज अलग अलग पार्टी से आता है, एक जगह से कुछ भी नहीं आता।
ओके, पहली प्राइमरी एजुकेशन मोड में जा चुका है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं एक 4 को एंट्री डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा से यहाँ पे मैंने ये परचेज कर लिए, मेरे पास अब एक और चीज मुझे जेल परचेज करना है और बॉक्स परचेज करने हैं। तो मैं लास्ट जो 2 चीजें मैं और परचेज कर लेता हूँ, देन हम सीधे बिल ऑफ मटेरियल की तरफ चलेंगे अपने, कि हाउ टू मेक मैन्युफैक्चरिंग, हाउ टू डू मैन्युफैक्चरिंग एंट्रीज। तो मैं यहाँ पे एक्स वाई एंड कंपनी कर लेता हूँ, मैं उसे जेल परचेज करूंगा। हाँ, स्टोर में इसको रखूंगा। 1000 ग्राम हो गया, इसको ये महंगा आता है, ये रख लेता हूँ और 1 लाख का परचेज कर लिया मैंने। मैं साथ में बॉक्सेस भी कर लेता हूँ। वैसे मुझे ये इसके साथ जेल के साथ बॉक्सेस अच्छा नहीं लग रहा, बट स्टिल बॉक्सेस कितने का आएंगे, 5 का एक आता है, मैंने परचेज कर दिया। तो अब आप लोग देखेंगे मेरे पास, अब मैं यहाँ पे आता हूँ स्टोर समरी में। स्टोर समरी में हम आते हैं। स्टोर समरी में आप देखेंगे मेरे पास इतने सारे आइटम्स पड़े हुए हैं, सारे आइटम्स मेरे पास अब हैं क्लोजिंग स्टॉक में। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं क्रिएट करूंगा माइक मैन। जब बनाएंगे तो माइक मैन बनाने में जो यूटिलाइज किए जाते हैं, उसके कैसे कैसे बनाना है, उसके मैंने स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, आइटम जब हमने सारा कुछ क्रिएट कर लिया है, देन हम यहाँ पे मास्टर क्रिएशन में जाएंगे। मास्टर क्रिएशन में स्टॉक आइटम्स यहाँ पे सारी क्रिएट हो चुके हैं। देन माइकमेल स्मॉल जो मैंने क्रिएट कर दिया है वहां पे, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे जैसे हम आगे चलेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये एंट्री है। जैसे ही हम यहाँ पे क्रिएट करने जाएंगे, जैसे कि हमारा माइक स्मॉल होता है, वही मैंने माइकमैन था, माइकमैन बनाया था मैंने यहाँ पे, माइकमैन मीडियम। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे F12 करना है। जैसे मैं F12 करूंगा, यहाँ पे देखना आप लोग, यहाँ पे अभी कहीं भी स्टॉक के बारे में, मटेरियल के बारे में कुछ नहीं आ रहा। तब से क्या करो, जब भी आप जिसको जो मटेरियल से बनेगा, जो भी प्रोडक्ट एक प्रोसेस से या एक प्रोडक्शन से होकर गुजरेगा, तो जब भी इसको क्रिएट करेंगे, यहाँ पे F12 करना है और इस लेजर में यहाँ पे यस करके मुझे, आप देखेंगे यहाँ पे ये आ रहा है सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। मैं इसको यहाँ पे यस करूंगा। यस करते ही मेरे पास अब यहाँ से मैं कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव करूंगा और देखिए अब यहाँ पे आफ्टर कंपोनेंट एडिशनल डिटेल में BOM का डिटेल आ चुका। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यस करूंगा इसको और मैं यहाँ पे डिटेल्स पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। अब मेन पॉइंट ये है कि अब हम करने क्या जा रहे हैं, बिल ऑफ का नाम है, बॉम का नाम है माइक मीडियम। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि जो माइक में मीडियम बनाओगे उसका यूनिट क्या होगा, नंबर्स होगा। यूनिट मैन्युफैक्चर क्या होगा, मेरे पास पीसेस होंगे, नंबर्स होंगे। मैं नंबर्स ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट सारे लगा रखे हैं मैंने। यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे आइटम के ऊपर, यहाँ पे F12 आपको क्लिक करना है। F12 करते ही आपकी स्क्रीन ये वाली ओपन हो जाएंगी और जैसे ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएंगी, आप ये वाला कॉलम जो यहाँ पे मेरा स्क्रीन है, आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको यस करना है। जैसे आप यस करोगे, आपका यहाँ पे ऑप्शन यस क्लिक हो जाएगा। यस क्लिक होने के बाद आपके पास ये वाला स्क्रीन आएगा। इसके अंदर आपको नाम डालना है कि आपके बिल ऑफ मटेरियल का नाम क्या होगा, माइकमैन स्मॉल, माइकमैन मीडियम, ये नाम डालोगे। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितने, मतलब कि जो यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक बार में कितना क्रिएट करने जा रहे हो, आप एक करने जा रहे हो, स्टॉक करने जा रहे हो, तो ये एक के लिए। अब मैंने जो यहाँ पे भी एक्सेल अटैच किया था आप लोगों के लिए,
एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक्सेल क्लिक किया था, ये वाली एक्सेल ये वाली स्क्रीनशॉट आप मुझे यहाँ पे हेल्प करेगा। मतलब अब ये वाली स्क्रीन बहुत मेन है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। आप यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ माइकमैन बनाने के लिए, माइकमैन मीडियम बनाने के लिए, 1 यूनिट बनाने के लिए आपको कौन कौन सा कंपोनेंट लगने हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डाटा है कि फ्रंट साइड कितने लगेंगे, एक। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे फ्रंट साइड, एक लगेंगे हमारे। लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ पे रखा हुआ है आपका, स्टोर डिपार्टमेंट रखा हुआ है, और एक क्वांटिटी लगेगा मेरे पास। देन मेरे पास से पूछ रहा है नेक्स्ट क्या है, बैक साइड। बैक साइड कितने लगेंगे, एक बनाने में मेरे पास एक ही लगेगा। मैं यहाँ पे इसको स्टोर डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लूंगा 1। मतलब ये लोकेशन पूछने का मतलब ये है कि ये कहाँ पे है। जब मैं इसको जब अभी समरी चेक करूंगा कि मेरे पास फ्रंट साइड कौन से स्टोर में कहाँ पे कितने रखे हुए हैं, तो वो चीजें वहां से प्लस माइनस हो जाएंगी। इसलिए मेरे से स्टोर की डिटेल मांग रहा है कि इस स्टोर में आपके पास कितने फ्रंट साइड रखे हैं, कितने बैक साइड रखे हैं, इसलिए मेरे से ये लोकेशन मांग रहे हैं, ठीक है। देन आते हैं बेस लेवल। बेस लेवल कहाँ रखा है, स्टोर डिपार्टमेंट रखा हुआ है, कितने लगेंगे, एक ही लगेंगे। देन नेट, फ्रंट नेट बैक नेट, ये देखेंगे आप, ये नेट है। फ्रंट नेट कितने लगेंगे और बैक नेट दोनों 2 हो जाएंगे टोटल में। देन आता है इंस्ट्रक्शन शीट। इंस्ट्रक्शन किट भी मेरे पास एक ही जाएगा, एक बॉक्स में। वो समझाया जाता है कि हाउ टू यूज, इसके लिए इंस्ट्रक्शन किट होता है। मेरा एक बॉक्स ही लगेगा इसके अंदर बनाने में भी। ओके, एमआरपी स्टिकर भी मैं एक ही लगाऊंगा, एक बॉक्स पे चिपकाऊंगा, मुझे स्टिकर चिपकाने हैं कि हाँ ये इस गुड्स की कीमत इतनी है। अब 100 डब्बे पे हाथ से तो लिखेंगे नहीं, इसलिए स्टिकर होता है। डिपार्टमेंट पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है, पर्सन होते हैं, उनको बॉक्स बनाने के लिए दिया जाता है, बॉक्स पे स्टिकर चिपकाने के लिए बंदे को दे दिया जाता है। एक बंदा ये जोड़ रहा होता है, एक बंदे इसके अंदर जो परफ्यूम डाल रहे होते हैं, एक बंदे फ्रंट और बैक को जोड़ रहे होते हैं, देन एक बंदा बॉक्स में डाल रहा होता है, देन उसको स्टिकर चिपका रहा होता है। ये होता है प्रोडक्शन टीम। सुबह से 7 तक लगे होते हैं और देन जाकर के फिर इवनिंग में प्रोडक्ट गुड्स रेडी हो जाते हैं। अब मुझे पेपर कितने लगेंगे, 20 पीसेस लग जाएंगे। और जेल, मेन चीज जो मेरे पास है कि जेल कितने लगेंगे, तो मैं एक जेल में 100 ग्राम ले लेता हूँ। जेल भी मेरे पास स्टोर में रखा हुआ है, मैं 100 ग्राम लेकर के बना लेता हूँ। इट मीन्स आप इसको समझिएगा कि मुझे जो मैंने क्वांटिटी डाले हैं, मैंने एक बॉक्स बनाने का क्वांटिटी डाले हैं, कि मुझे एक माइक पेन बनाने में एक फ्रंट साइड चाहिए, एक बैक साइड चाहिए, एक बेस लेवल चाहिए, एक नेट चाहिए, एक इंस्ट्रक्शन किट चाहिए, एक बॉक्स चाहिए, एक एमआरपी चाहिए, एक पेपर चाहिए, और जेल 100 ग्राम चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख देता, तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता ना, 10 नंबर, तो इसका मतलब मुझे 10 बनाने में एक फ्रंट चाहिए, 10 बनाने में, अगर मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 10 बनाने में मुझे एक फ्रंट चाहिए, 10 बनाने में एक 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 बैक चाहिए। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे एक इसलिए लिया है, 1 इसलिए लिए क्योंकि मेरा जो प्रोडक्शन हो रहा है एक एक यूनिट करके हो रहा है, बैच में नहीं हो रहा। अगर बैच में होता कि 10 के बैच में एक यूनिट हो रहा है, 20 के बैच में एक हो रहा है, 100 के बैच में एक बार जनरेट कर रहे हैं, तो देन मैं 100 यहाँ पे 100 जो बिल ऑफ मटेरियल बनाऊंगा वो 100 का बनाऊंगा, ठीक है। देन अब आता है यहाँ पे कंट्रोल ए करते हैं और ये मेरा रेडी हो गया। देन मैं एक स्मॉल का भी बना लेता हूँ, ये जो मेरा स्मॉल है, मैं एक स्मॉल का भी बना लेता हूँ यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल। ये देखिए ये कॉलम करूंगा, स्मॉल का भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे स्मॉल का भी प्रिंट स्क्रीनशॉट लगा दिया है। स्मॉल में कुछ मैंने कम नहीं किया, स्मॉल में जस्ट मैंने तो कम किया है जो जेल है, जेल का थोड़ा सा परसेंटेज कम कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। और पेपर क्योंकि बॉक्स छोटा होगा तो पेपर कम लगेगा स्मॉल में, ठीक है। तो मैं वैसे ही कर देता हूँ यहाँ पे स्मॉल, माइक में स्मॉल, एक यूनिट के लिए बना रहा हूँ। फ्रंट लगेगा एक, 5 लगेगा मेरे पास, स्टोर डिपार्टमेंट्स लगेगा एक, लगेगा फ्रंट के बाद बैक, एक बेस लेवल, एक बॉक्स, एक लगेगा इंस्ट्रक्शन की, एक लगेगा एमआरपी स्टिकर, एक लगेगा पेपर, 50 लगेंगे। जेल स्टोर डिपार्टमेंट से ले लेता हूँ, 50 लगेंगे।
आई थिंक मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ। फ्रंट साइड, बैक साइड, बेस लेवल, बॉक्स, इंस्ट्रक्शन की, एमआरपी, पेपर, जेल। बैक साइड, बेस लेवल है, हो गया। फ्रंट साइड हो गया, बॉक्स भी हो गया, इंस्ट्रक्शन की, एमआरपी, स्ट्रिक्शन, नेट, नेट हो गया, नेट नहीं हो, नेट लगे 2 पीसेस स्टोर डिपार्टमेंट। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मुझे अगर एक माइक में स्मॉल लगाने हैं तो एक एक ये चीजें एक के अकॉर्डिंग है। अगर मैं इसके बैच में अकॉर्डिंग बनाऊंगा, बैच जैसे बैच पोस्टिंग होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक बार में 100 प्रोडक्शन हो रहे हैं, एक बार में 200 प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, देन इस केस में आपके यहाँ पे नंबर्स चेंज हो जाएगा। तो आपको जो बिल ऑफ मटेरियल बनाना होगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग क्रिएट करना होगा। कंट्रोल ए और मैंने बना दिया। सो सबसे पहले अब अभी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को, मैंने किया रिपीट करने सबसे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे ये चीजों को बनाया था। ये इन्वेंट्री मास्टर सारे क्रिएट किए थे मैंने, देन मैंने लेजर्स बनाए थे और मैंने परचेज किए थे, करेक्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने अपने लेजर को अभी जो मैंने क्रिएट किया है बिल ऑफ मटेरियल, टैली में कैसे करते हैं ये स्टेप वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, सारा का सारा स्टेप वाइज दिया हुआ है, कहाँ से एलिमिनेट करना है, कहाँ से निकालना है। मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को, जब भी आप क्रिएट करेंगे लेजर पे जाइए, सिंपल सा लेजर पे, और ये यहाँ पे जैसे माइकमैन क्रिएट था, मैं माइकमैन लार्ज कर देता हूँ दोबारा से, माइकमैन लार्ज, मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ, सॉरी, स्टॉक आइटम्स, माइकमैन लार्ज। यहाँ पे प्राइमरी में मैं फिनिश को सिलेक्ट करूंगा, नंबर्स लूंगा, और ये देखिए बॉब, BOM, बिल ऑफ मटेरियल। आप इसको जैसे यस करोगे, यहाँ पे यस करना है, देन ये सारी चीजें खुल जाएंगी कि लार्ज बनाने में आपका क्या क्या चीज लगनी है, ठीक है। सो अब देखिएगा, मैंने क्रिएट कर लिया बिल ऑफ मटेरियल, क्रिएट कर लिया माइक में स्मॉल का, माइक में लार्ज का। देन अब आते हैं हम, बाउचर क्रिएट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। बाउचर, कौन सा बाउचर, ये इसकी जो एंट्री होती है सेल और परचेज बाउचर में नहीं होती, इसकी जो एंट्री की जाती है, इसकी एंट्री की जाती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग बाउचर में। ये सारी स्क्रीनशॉट्स मैंने ऑलरेडी बता दिए, स्मॉल का ही बना दिए। अब हम क्रिएट करेंगे बाउचर टाइप पे जाकर के मैन्युफैक्चरिंग बाउचर को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट में, और यहाँ पे आएंगे बाउचर टाइप, बाउचर टाइप पे यस करेंगे, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा मैन्युफैक्चरिंग बाउचर। देन आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं बाउचर टाइप आया, बाउचर टाइप पर मैंने क्लिक किया, देन आप क्रिएट पे जाऊंगा, क्रिएट पे करूंगा यहाँ पे, देन आपका ये स्क्रीन विंडो खुल जाएगा। स्क्रीन विंडो खुलने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड टाइप है सिलेक्ट टाइप ऑफ बाउचर में स्टॉक जर्नल सेलेक्ट करेंगे आप। स्टॉक जर्नल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे लास्ट वाला जो यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, आप इस वाले को करेंगे यस, ठीक है। यस करने के बाद स्क्रीन को क्या करेंगे, नाउ बाउचर इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, देन आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए करके स्क्रीन एक्सेप्ट करेंगे। देखिए आप यहाँ पे स्टॉक जर्नल में क्रिएट करूंगा, यहाँ पे स्टॉक जर्नल आ गया यहाँ पे। देन स्टॉक जर्नल आने के बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, लास्ट वाले यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग, इसको करेंगे यस, कंट्रोल ए करके मैं अभी सीट को एक्सेप्ट करूंगा और बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। तो अब सबसे इजीएस्ट मेथड अब क्या करना है मुझे, अब आप लोग एक चीज देखिएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, स्टॉक समरी देखेंगे आप लोग। स्टॉक समरी में आपके पास, मैं यहाँ पे F12 कर रहा हूँ, ओपनिंग यस कर रहा हूँ, यस, गुड्स इनवर्ड यस, आउटवर्ड यस, क्लोजिंग बैलेंस यस। तो अभी आप लोग देखेंगे मेरे पास ओपनिंग में केवल एक यही था जो मैंने फ्रंट साइड का ओपनिंग डाला था। ड्यूरिंग द ईयर मैंने इनवर्ड मतलब ये सारे परचेज किए मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आउटवर्ड खाली है, ठीक है। अब हम देखते हैं, हम एंट्री पास करने जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैं एंट्री पास करूंगा, यहाँ पे कॉन्ट्रा है F5, F6, F7, बट मेरे पास स्टॉक जर्नल का नहीं है, तो मैं F10 पे आऊंगा। F10 पे करने के बाद या तो आप लोग देखेंगे कि आपको यहीं पे दिख गया है, ये देखिए मेरे को मैन्युफैक्चरिंग बाउचर दिख चुका है। अगर नहीं दिखे तो आप यहाँ पे शो है, तो यहाँ पे शो इनएक्टिव पे प्रेस कीजिएगा, तो जितने भी इनएक्टिव वाले होते हैं वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरिंग बाउचर पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे एंट्री करना स्टार्ट करूंगा। अब ये देखिए, अब मैं यहाँ पे, मुझे माइकमैन बनाना है, माइकमैन मीडियम बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है, लोकेशन कौन सा है मेरा, कहाँ जाएगा बन करके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले लूंगा। क्वांटिटी कितनी बनाई है मैंने अब इसमें,
मैंने अगर दिन में पूरे दिन में 10 बनाया तो 10 लिख दूंगा, और जैसे 10 बनाऊंगा मेरे पास सारे डिटेल्स आ जाएंगे। 10 बनाने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे 10 बनाने के लिए मुझे ये 10 फ्रंट साइड चाहिए, 10 बैक साइड चाहिए, 10 बेस लेवल चाहिए, 10 इंस्ट्रक्शन किट चाहिए, 10 बॉक्सेस चाहिए, 10 एमआरपी चाहिए, 10 पेपर चाहिए, और 100 ग्राम। एक एक बनाने के लिए मुझे 100 ग्राम चाहिए थे, तो 10 बनाने के लिए मुझे कितने चाहिए, 1000 ग्राम चाहिए। ठीक है, अब एक मिनट यहाँ पे देखने दीजिए, मैं अमाउंट क्यों नहीं उठा रहा। शायद जब मैंने जर्नल एंट्री करी थी वहां पर प्रॉब्लम आया, एजुकेशन मोड की मोड की वजह से। मैं एक बार जर्नल चेक कर लूँ। आई थिंक पहले एंट्री नहीं हुई है, या हुई है, एक मिनट। हो गई है सारी एंट्री। तो मैं दोबारा से जा रहा हूँ बाउचर पे जा रहा हूँ, यहाँ पे अदर वाउचर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंट्री खोलूंगा। मुझे, मैं दोबारा से वही माइकमैन बना रहा हूँ, माइकमैन मीडियम बनाना है मुझे। लोकेशन क्या है, मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चूज कर लूंगा। यहाँ पे 10 क्वांटिटी बनानी है मुझे, और अब यहाँ पे देखिए सारे एंट्रीज आ चुके हैं। ठीक है, अब इस वाली एंट्री में नेट वाले में प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, नेट वाले एंट्री की जो टैली एंट्री वो चेक करना पड़ेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही पास करने के लिए। एक्चुअली ये एंट्री में प्रॉब्लम हो गई है, चलते चलते लाइव सेशन में ये एजुकेशन बोर्ड में चला गया, उसके चक्कर में प्रॉब्लम हो गई है, अदरवाइज ठीक चल रहा है। ठीक है, अब देखिए आप लोग, मैं दोबारा से माइकमैन का जो बाउचर है मैन्युफैक्चरिंग एंट्री क्रिएट करने जा रहा हूँ। इसमें माइकमैन स्मॉल करता हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इंस्ट्रक्शन किट एंड नेट। एक बार इंस्ट्रक्शन किट नेट का एक बार और चेक करता हूँ, एक्चुअली इसमें कुछ एरर की उसका अमाउंट नहीं उठा रहा। इंस्ट्रक्शन किट आपकी मेन प्रोडक्शन में गई है, उस वजह से एरर होगा शायद। मे भी हो सकता है, हाँ, तो मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ गया कहाँ पे। मेन लोकेशन में गई हुई थी ना। ओके 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 ओके, समझ गया, हाँ, मे भी उसी चक्कर में हो रहा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें मैंने स्टोर से उठाया था। जब मैंने बॉम्ब बनाया था इसका बिल ऑफ मटेरियल, तो मैंने सारा चीजें स्टोर से उठाया था, और जबकि जो मैंने परचेज किया है वो मेरा परचेज एंट्री जा चुका है, मैंने हाँ, प्रोडक्शन टीम में, प्रोडक्शन में। तो इस चक्कर में वो एंट्री नहीं उठा रहा, तो मैं उसको ठीक कर लेता हूँ। इंस्ट्रक्शन की
ये रहा, यहाँ पे स्टोर में ये चला गया है, तो स्टोर में है ही नहीं, इसलिए वो अमाउंट ही नहीं उठा रहा था। तो आप यहाँ पे देखिए स्टोर हो गया, क्योंकि जो मैंने बिल ऑफ मटेरियल डाला था, बिल ऑफ मटेरियल में सारे प्रोडक्ट को मैंने डाला था कि आपको स्टोर से उठाना है, इसलिए ये सारी एंट्री मुझे स्टोर से उठा के दे रहा है। अब यहाँ पे XYZ आ गया मेरे पास, XYZ से मैंने जेल परचेज किया है, जेल को भी मैं स्टोर से ही उठाऊंगा, और बॉक्स है, बॉक्स को भी मैं स्टोर से उठाऊंगा। अब आई थिंक मेरी सारी एंट्री ठीक हो गई है। ये जो प्रॉब्लम आई इसलिए क्योंकि ये जो लोकेशन था वो गलती से लोकेशन मेरा स्टोर में था ही नहीं, और मैं पास कर रहा था स्टोर से। सो अब आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है। सो बिल ऑफ मटेरियल पे आते हैं। माइक में मीडियम बनाना है, लोकेशन मेरे पास प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में बन के आएगा। यहाँ पे 10 क्वांटिटी ले लेंगे हम, ठीक है, 10 क्वांटिटी लेंगे, और हमारे पास सपोज करते हैं ये जब मैंने जनरेट किया हुआ से पता होगा ये चीजें, मैं यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक है मेरे पास नेट का, क्योंकि 10 बनाने के लिए मेरे पास 10 के पास है नहीं, तो नेट की जो मैंने परचेज किया था, आई थिंक नेट मैंने कम परचेज किया है, तो नेट को मैं दोबारा बढ़ा लेता हूँ, 100 परचेज और कर लेता हूँ। वाउचर में जाके पेमेंट मेरे पास यहाँ पे है, परचेज में गया, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि अभी जो एरर आया, अगर आपके पास स्टोर डिपार्टमेंट में अगर वो आइटम नहीं है और आप उसको क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, अमाउंट ही नहीं लेगा। जैसे कि अभी मैंने देखा था कि जैसे ये स्टोर डिपार्टमेंट मेरे पास था ही नहीं, और मैं ये 10 आइटम क्रिएट कर रहा था, तो ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो ऐसा ही होता है कि जितनी बार भी आप लोग, अगर आपके पास स्टोर डिपार्टमेंट में वो आइटम है ही नहीं, क्रिएट हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास स्टोर डिपार्टमेंट में मैंने क्या, माइकमैन के मैंने 10 पीस बना दिए हैं, माइकमैन स्मॉल के, ठीक है, मैं 10 नहीं 100 पीस बनाता हूँ, 100 पीस बनाता हूँ यहाँ पे। देन अब यहाँ पे मैंने ये 100 पीसेस बना दिए हैं, यहाँ पे ये सब कुछ 100 पीसेस से मेरे को 100 पीसेस बनाने के लिए 100 चाहिए फ्रंट साइड, 100 बैक साइड, और कितने कितने रुपए का है इसने ऑटोमेटिक ले लिया। ये कैसे लेता है, ये जिस रेट में मैं परचेज कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करता है, यहाँ पे उठा देता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कई बार क्या होता है, आप लोगों का स्क्रैप भी आ जाता है कुछ, अगर कुछ स्क्रैप आता है देन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं स्क्रैप में क्या बिकने वाला। सपोज करो पेपर है, पेपर आप यूज करते हो, स्क्रैप आपका निकलेगा ही, और स्क्रैप कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्शन से उठा के बेच देंगे। तो कई बार क्या होता है, स्क्रैप 10% मान लेते हैं पेपर कि पेपर काट काट के हम चिपकाएंगे, तो कुछ ना कुछ परसेंटेज हमारा यहाँ से जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा मतलब जो स्क्रैप निकलेगा उसको भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, मतलब बेचने के लिए अल्टीमेटली ये मेरा कॉस्ट से कम हो जाएगा। मैंने 6 लाख रुपए लगाए यहाँ पे, जब मैं 10% को पेपर उठा के बेच दूंगा, 10% नहीं रखता, 10% बहुत ज्यादा हो गया, 1% रखता हूँ। पेपर का यूटिलाइजेशन मेरा इतना हुआ, पेपर मतलब मैंने 50,000 का यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे देखेंगे 50,000 का, उसमें से 1% मेरा वेस्टेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि इस जगह पे आप एडिशनल कॉस्ट भी डाल सकते हो, अगर आपको पता है तो। सपोज करो कि यहाँ पे आपके पास आपने यहाँ पे कुछ वेजेस पे किए, तो आप यहाँ पे वेजेस भी डाल सकते हो। वेजेस का लेजर क्रिएट कर लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंस में, आपका ये चीजें जो है वो इतना अमाउंट आप परसेंटेज भी लगे, आपने कितना परसेंटेज आपने वेजेस दिया है, या आपने पूरे दिन में किसी को 10,000 वेजेस दिए हैं, तो आप 10,000 ले लीजिए। यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी भी अगर आपके पास डिफाइंड है, पैरामीटर है आपके पास, देन आप लेकर के फिगर डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कितने लग गया, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी आपको फुल वैल्यू का 1% लग गया, तो यहाँ पे 1% की फिगर आ जाएगी। मतलब ये चीजें आपके पास अब वो बता देगा कि इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम कितना है,
जो आप एक बेचने जा रहे हो माइकमैन, उसका रेट कितना 6173। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं आपका ये 100 माइकमैन आपने बना दिए। अब मैं 100 स्मॉल बना देता हूँ, 100 नहीं मैं 150 बनाऊंगा। लोकेशन स्टोर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना है, मैं 150 क्रिएट कर लेता हूँ। अब 150 क्रिएट करूंगा तो देखेंगे आप फ्रंट साइड मुझे 150 चाहिए, और जितने जितने क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिया है ना उसके अकॉर्डिंग अभी मैंने आपको स्टॉक समरी दिखाया था, वहां से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं चल रहा हूँ यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे फटाफट क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं ये देख करके चलता हूँ कि जो यहाँ पे स्क्रैप है, मेरा स्क्रैप दिख रहा है, स्क्रैप है मेरे पास पेपर, यहाँ पे पेपर मेरा प्रोडक्शन में है पड़ा हुआ बेचने के लिए। 1% स्क्रैप गया मेरे यहाँ से, और यहाँ पे मैंने वेजेस पे किया, मैं वेजेस भी ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे परसेंटेज ना डाल करके यहाँ पे परसेंटेज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक फिक्स अमाउंट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैंने 10,000 रुपए एज इलेक्ट्रिसिटी पेड किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे इफेक्टिव रेट स्मॉल का कितना है, 3265 रुपए का। ठीक है, कंट्रोल किया मैंने, बाहर आ गया। अब मेरे पास, अब देखेंगे आप, मेरे पास अब समरी में आएंगे आप, स्टॉक समरी में, तो उस टाइम तक मेरे पास केवल रॉ मटेरियल था। अब देखिए रॉ मटेरियल के साथ मेरे पास फिनिश गुड्स भी है। ठीक है, अब देखिए जो रॉ मटेरियल है मेरे पास, रॉ मटेरियल में देखेंगे आप लोग, मेरे पास अभी भी 750 बैक साइड के बचे हुए हैं, 750 फ्रंट बेस लेवल है बॉक्स, लेकिन मेरे पास जेल कम पड़ गए क्योंकि मैंने प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया। ठीक है, मैंने परचेज कम किए थे, बट मैंने आप लोगों को जो बिल ऑफ मटेरियल वो ज्यादा बना करके दिखा दिया, इसलिए मैंने ये, तो ये नेगेटिव हो गया और एक ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो जब भी आप बीइंग अकाउंटेंट एंट्री करें तो ये जरूर चेक कर लेना, अगर इसका मतलब अगर ये नेगेटिव आ, नीचे प्रोडक्शन टीम में जो बंदे हैं प्रोडक्शन कहाँ से कर रहे हैं, या तो उन्होंने रिपोर्ट झूठी दी है कि 150 उन्होंने माइकमैन जनरेट कर दिया और 100 मीडियम माइकमैन बना दिया एक दिन के अंदर अंदर प्रोडक्शन टीम में। बट अब प्रोडक्शन टीम को बोलोगे भाई साहब जेल कहाँ से लेके आए हो, जेल तो हमारे पास है ही नहीं, आपने बना कैसे दिया प्रोडक्शन टीम में। आप बोलोगे पेपर नेगेटिव हो रहा है मेरा, कैसे बना दिया आप लोगों ने। तो या तो उन्होंने कुछ लिखने में गलती करी है, या प्रैक्टिकल जो होते हैं सामान आ जाता है स्टोर शुरू करो, लेकिन बिल आने में अकाउंट्स टीम के पास 1 से 2 या 3 दिन लग जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आपके पास टैली में स्टॉक तो है नहीं, बट प्रोडक्शन फटाफट फटाफट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये चीजें दिखना बता रहा हूँ। मैंने देखिए आप लोग, माइकमैन के मैंने 100 यूनिट बनाए थे, 100 यूनिट आ गए। माइकमैन स्मॉल के मैंने 150 यूनिट बनाए थे, मेरे पास 150 यूनिट आ चुके हैं। ठीक है, अगर मुझे इसको और अच्छे तरीके से देखना होगा तो मैं यहाँ पे F12 करूंगा। F12 करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सो क्वांटिटी को यस करूंगा, इसे भी यस करूंगा। ठीक है, इसको भी यस करूंगा, और ये ओपनिंग बैलेंसेस पे यस करूंगा, सब कुछ मुझे दिख जाएगा। एक रिपोर्ट देखना है मुझे, क्या हुआ क्या नहीं। मेरे पास ओपनिंग में कुछ नहीं था, मैंने इनवर्ड है मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके बनाया है। इसके ऊपर एंट्री करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग एंट्री से आया है ये। ठीक है, देन आपके पास रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल में चेक करेंगे, मेरे पास परचेज 1000 किए थे, देखिए मैंने 2000 ग्राम परचेज किए थे और मैंने यूज कर दिए 1750 ग्राम, मतलब 2 kg परचेज किए थे और 17.5 kg मैंने यूज कर दिया, इसलिए मेरा नेगेटिव आ गया है। तो आप इस तरीके से अपने स्टॉक को परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो तो आप ऑडिट करने भी ये चीजें चेक कर सकते हो कि ये भाई साहब ये नेगेटिव कैसे आ गया। स्टॉक कंपनी में जाइए, आप चेक कीजिए, जब आपके पास स्टॉक है ही नहीं, आपके पास स्टॉक है ही नहीं, तो आपने क्रिएट कैसे कर दिया आइटम, तो कहीं ना कहीं या तो चालान के बेस पे उन्होंने लाया होगा, या अकाउंटेंट के पास बिल नहीं पहुंचा होगा, ऐसा कुछ भी रीजन मिलेगा, लेकिन रीजन मिलेगा जरूर। आप बोलोगे क्या हम यहीं से देख सकते हैं इस एक्सेप्शनल रिपोर्ट को, नहीं, बाहर जाओ, आप डिस्प्ले पे डी फॉर डिस्प्ले क्लिक करो, यहाँ पे आता है एक्सेप्शनल रिपोर्ट, ये देखिएगा आप लोग, यहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं नेगेटिव स्टॉक कौन कौन सी है, आपको साफ मिल जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकालिए और अकाउंटेंट को और मैनेजर को बता दीजिए कि आपकी प्रॉब्लम यही चीजें हैं, स्टोर में जेल नहीं है और जेल खत्म कर दिया है, और यहाँ पेपर नहीं है, खत्म हो चुका है। या कई बार क्या होता है, वहां का स्टोर था वहां से ट्रांसफर कर दिया एक स्टोर से दूसरे स्टोर में, तो उस टाइम नेगेटिव स्टॉक आने की संभावनाएं भी होती है, वो उसको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब मेरे पास लास्ट टॉपिक बचा हुआ है सर आप लोगों के लिए, मैंने ये सारी स्क्रीनशॉट इसके अंदर लगा रखा है कि कैसे प्रोडक्शन किट, ये परचेज की एंट्री डाली थी मैंने, ये परचेज भी करना पड़ेगा हमें। जब मैं मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बनाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बनाने की एंट्री है, आप लोग देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग मैंने जनरल कर दिया। जनरल करने के बाद अगर हम यहाँ पे रिपोर्ट्स देख सकते हैं, आप देखिएगा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक डिटेल आ रही है। जब नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे हम लोग F12 क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो चीज आपको यस करके चेक करना आप चेक कर सकते हैं।
देन आपका एक ऐसा रिपोर्ट आएगा जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। आप लोग यहाँ पे देखेंगे स्टॉक समरी में, तो ये देखिए ये रिपोर्ट आ रहा है यहाँ पे F12 करके। जो जो चीज आपको यस करना है वो चेक कर लीजिए। फिर से करता हूँ, क्वांटिटी चाहिए यस, वैल्यू चाहिए यस, ये चीजें, ये रिपोर्ट्स, इस रिपोर्ट्स की यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रखा है मैंने, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लास्ट पे, जो हमारा टॉपिक है आज का। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कितने बॉम्ब एंट्री है, कैसे बनाया हमने चीजें, वो चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं GoTo में जा करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कैसे किया जाता है, बहुत ही इजी है। उसको भी मैं बता देता हूँ कैसे किया जाता है। हाउ टू मेक रीऑर्डर लेवल, क्लिक ऑन GoTo, क्रिएट पे जाएंगे और रीऑर्डर। आप सपोज करो कि आपके पास आप, अच्छा पहले मैंने जो माइकमैन बनाया है उस माइकमैन को मैं एक आधा माइकमैन बेच भी देता हूँ, ताकि आपको जो आपको है वो समझ में आ जाएगा, क्या बोलते हैं रीऑर्डर लेवल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो माइकमैन मैंने बना दिए, अब मैं माइकमैन को बेचूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पार्टी का नाम क्रिएट कर लेता हूँ एस एंड कंपनी, क्योंकि सेल्स कर रहा हूँ मैं। डायरेक्ट ये मेरा सेल्स अकाउंट में जाएगा और ऑल टेप, मैं अभी कुछ नहीं देख रहा कि मेरा पार्टी नेम एस, तो डेटर्स में जाएगा। हाँ 1 मिनट सर, 1 मिनट। एस एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, डेटर्स में जाएगा, कंट्रोल ए, देन है मेरे पास यहाँ पे डेटर्स में आ गया है। अब मैं सेल करूंगा, सेल लेजर के थ्रू, यहाँ पे गलत बन गया, कंट्रोल सी, सेल्स लेजर। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको इंटरेस्ट रेट 18%, 12% लेजर बनाना, ताकि जीएसटी उठाएगा, ठीक है। मैं अभी उस चीजों में नहीं जा रहा जीएसटी के लिए, जस्ट मैं एंट्री करके दिखाऊंगा ताकि जो मेरा स्टोर का मूवमेंट है वो दिखे, ठीक है। माइकमैन में जाएंगे, माइकमैन मीडियम में आएंगे। माइकमैन मीडियम मेरे पास लोकेशन में कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मेरे मेन लोकेशन था, प्रोडक्शन में पड़ा हुआ है, मैं यहाँ से उठाऊंगा। 100 क्वांटिटी बनाई थी मैंने, मैं काम कर रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी भेज दूँ, 85 क्वांटिटी भेज देता हूँ। नितिन जी आपने माइक में ना स्टोर में किया था। ओके, थैंक यू। ये चीजें तो हम लोग देख लेंगे जब बनाते टाइम, आप लोग जस्ट मैं बता रहा हूँ बनाते कैसे हैं, और थैंक यू मुझे दिखा देने के लिए। सो स्टोर मेरे पास 85 मेरे माइकमैन जो थे स्टोर में पड़े हुए थे, ठीक है। 85 क्वांटिटी है, मेरे पास ये 62,000 था, मैं 70,000 बेच रहा हूँ, ठीक है। देन आता है माइकमैन स्मॉल। माइकमैन स्मॉल आई थिंक मैंने ये तो मैंने प्रोडक्शन में बनाया था इतना, और इसको भी मैं बेच देता हूँ 125 130 बेच देता हूँ, ठीक है। ये 35,000 समथिंग आया था कॉस्ट में, इसको 40 से बेच देता हूँ। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कॉस्ट, 40,000 4,000, चलो कॉस्ट एक्चुअली मेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि मैंने फिगर्स डाले थे। 4,000 होगा, 4,000। एक सेकेंड मैं देख ही लेता हूँ ना यहाँ से, जैसे आपको अगर देखना हो कि किसकी कॉस्ट कितनी है, अब स्टॉक समरी में आइए, स्टॉक से फिनिश गुड्स पे आइए और यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे रेट आ रहा है, यहाँ पे इसका 3200 आ रहा है, 65 रुपए, ठीक है। और ये यहाँ पे दिख रहा है स्टोर डिपार्टमेंट पे, और ये दिख रहा है मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 3265 रुपए कॉस्ट है मुझे स्मॉल बनाने का, और बिग बनाने का कितना है 6100 रुपए, ठीक है। तो अब मैं सेल करने जा रहा हूँ वाउचर्स में, वाउचर्स में आऊंगा, मैं सेल करूंगा, यहाँ पे पी एंड कंपनी को सेल करने जा रहा हूँ, कंट्रोल ए, सेल लेजर में सिलेक्ट करूंगा, माइक मैंने स्मॉल बेचूंगा, मीडियम मेरे पास पड़ा हुआ है स्टोर डिपार्टमेंट में, स्टोर डिपार्टमेंट से ले लूंगा 1000 यूनिट, 1000 नहीं मैंने 100 ही बनाए हैं, तो मैं 80 यूनिट बेच दे, 80 नहीं 85 बेच देता हूँ, और मैंने 7,000 रख लेता हूँ उसका कॉस्ट, क्योंकि 6100 रुपये तो मेरा कॉस्ट ही आ रहा है। और देन मेरे पास आ रहा है माइक में स्मॉल, ठीक है। माइक में स्मॉल मेरे पास स्टोर डिपार्टमेंट में रखा हुआ है सर, देन स्टोर डिपार्टमेंट रखा है, तो मैं 120 क्वांटिटी यहाँ से 120 नहीं 130 बेच देता हूँ उठा करके, नेगेटिव। अच्छा ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पड़ा हुआ था, ठीक है, ठीक है। मैं इसको मेरा 3100 आ रहा था, मैं इसको 4000 भेज देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेल कर दिया है और कंट्रोल लेकर के मैं बाहर निकलता हूँ। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे सर, अब फिनिश गुड्स में आके मैं दोबारा स्टॉक समरी पे आपको दिखाता हूँ। अब ये स्टॉक समरी में देखेंगे आप, यहाँ पे कंट्रोल F12 करेंगे, यस कीजिए, यस कीजिए, इसको भी यस कीजिए, जो भी रिपोर्ट्स आपको यहाँ देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं।
आप यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट भी लगा सकते हैं, आपको जीपी रेशियो अगर देखना है तो वो चीजें भी आपको दिख जाती है। वो कहाँ से दिखती है बता दूंगा, न्यू कॉलम्स दिख जाता है। आप यहाँ क्लिक क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर जो परसेंटेज आ जाता है इसके यहाँ पे एक ऑटो कॉलम में यहाँ पे आप यहाँ पे मंथली भी देख सकते हैं, वीकली भी देख सकते हैं चीजें। तो इन चीजों पे आप यहाँ पे आ जाता है चीजें सारी, हॉरिजॉन्टल देखना है कैसे देखना है वो आ जाता है। बट अभी मेरा पॉइंट ये है कि आप ये देखेंगे सर रॉ मटेरियल, आप देखेंगे यहाँ पे इनवर्ड है, आउटवर्ड को मैंने यस नहीं करा, गुड्स आउटवर्ड यस कर देता हूँ। अब देखेंगे सर आप लोग, देखिए मेरे पास रॉ मटेरियल, मैंने अभी मैं रॉ मटेरियल कॉलम पे हूँ, तो ये सारे चीज मैंने परचेज किए थे, ये वाला कॉलम जो ये एरिया है। और जैसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया तो मेरे पास आ गया, और ये मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल बच गया। ठीक है, अब ये जो मैंने स्टॉक बनाया था उनसे ये वाला प्रोडक्ट बना वो इनवर्ड में आ गया और मैंने ये बेच दिए। अब मेरे 15 बचे हुए और 20 बचे हुए। 15 बचे मेरे पास स्टोर डिपार्टमेंट, उसके माइकमैन मीडियम के और माइकमैन स्मॉल के, मेरे 20 क्वांटिटी बचे हुए। ठीक है, अब जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि हम यहाँ पे रीऑर्डर लेवल कैसे सेट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, वो दिखा देता हूँ आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे क्रिएट पे आएंगे रीऑर्डर लेवल पे। देन पे सबसे पहले क्रिएट करेंगे, गो टू में जाके क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ पे आता है स्टोर, आप यहाँ पे सर्च करेंगे रीऑर्डर, पता है स्टोर ग्रुप रीऑर्डर स्टेटस। ठीक है, आप उसके अंदर जाकर के आप अपना जो रीऑर्डर लेवल है और मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर है उसको आप सेव कर सकते हैं। कि रीऑर्डर लेवल मतलब कि जैसे आपके स्टोर में 10 क्वांटिटी बच गई तो आपको ऑर्डर करना है या नहीं करना वो डिसाइड करेगा। देन उसके बाद कितना ऑर्डर करना है वो मिनिमम क्वांटिटी डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐसा कुछ विंडो दिखेगा आपको रीऑर्डर लेवल आइटम वाइज का। ठीक है, देन आप यहाँ पे देखेंगे मुझे माइकमैन मीडियम में सेट करना है, माइकमैन मीडियम सेट करूंगा और यहाँ पे आपका आएगा रीऑर्डर क्वांटिटी। इसमें मैंने सेट किया हुआ है कि 20 क्वांटिटी से नीचे आ गया तो मुझे ऑर्डर करना है, और कितने करने, मुझे 25 नंबर जो माइकमैन मीडियम के कितने करने, 25 करने। ठीक है, तो ये मैं एक बार करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे आप बॉक्स में भी कर सकते हो रॉ मटेरियल में, कि बॉक्स अगर आपके पास 100 नंबर से कम रह गए तो आप उसको ऑर्डर करोगे और मिनिमम कितनी 50 नंबर्स करोगे। ठीक है, एंट्री पोस्ट करने के बाद सबसे यहाँ पे एंट्री हो जाने के बाद आप चेक कर सकते हैं, वही मैंने स्क्रीनशॉट सारा लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। दिस इज लास्ट टॉपिक, ये एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स थे आपके। एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स कैसे देखते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो मैं आता हूँ गो टू पे, यहाँ पर रीऑर्डर है। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे अभी इन्होंने बताया क्लोजिंग स्टॉक आपका इतना है। ठीक है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जो मैंने वहाँ पे दिखाया था आपका कि जो मेरा व्यू आ रहा था वहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी आप देखेंगे। अब देखिए मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने बचे हैं, 15 और 20। ठीक है, नेट अवेलेबल कितना है मेरे पास, 15 और 20। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर में इस पे क्लिक करूंगा, एक मिनट दे दीजिएगा मुझे। ओके सॉरी, मैं अभी डिटेल देख रहा हूँ, मैंने क्रिएट नहीं किया। ठीक है, एक मिनट दीजिए मुझे। ओके, ये क्रिएट पे ऑल वाउचर पे क्लिक करना पड़ेगा।
नहीं सर, एक सेकेंड यहाँ पे ना इसी में ही आता है, गो टू में कंपनी में इनेबल करना होता है आई थिंक। एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए सर, आप लोग एक मिनट, मैं इस वाले में देख के दिखा देता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मे बी जो इस कंपनी में एजुकेशन मोड पे है, इस चक्कर में दिख रहा है मुझे। इस केस में आप देखेंगे अब देखिए आप लोग, जैसे कि मैंने यहाँ फिनिश गुड्स बना रखा था, यहाँ पे इसको जो मैंने सेट किया था, यहाँ पे माइकमैन मीडियम है, क्लोजिंग स्टॉक 15 है। यहाँ पे मैंने ये जो रीऑर्डर लेवल यहाँ पे सेट किया हुआ है, रीऑर्डर लेवल जो सेट किया हमने यहाँ पे 20 नंबर सेट किया होता। तो जैसे आप देखेंगे मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 15 बचा हुआ है। रीऑर्डर लेवल कितना है मेरे पास, 20 है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 15। रीऑर्डर लेवल कितना है मेरे पास, 20। तो इन्होंने शॉर्टफॉल कितना बता दिया ना, कि जो शॉर्टफॉल है मेरे पास कितना है, शॉर्टफॉल मेरे पास 5 का शॉर्ट है। देन ये बोलते हैं कि क्वांटिटी ऑर्डर कितना है, 15। तो वो ऑर्डर कितना प्लेस कर देगा, 15। मतलब कि मुझे यहाँ से सेट करना है चीजों को, और चार्ट यहाँ पे गो टू टैली में जाना है। गो टू टैली में जाने के बाद यहाँ पे मुझे रीऑर्डर का जो जितने भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, रीऑर्डर के जितने भी रिपोर्ट्स हैं, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इस वाले में मेरे पास माइक्रो मीडियम में कितने हैं कितने नहीं, हम यहाँ से ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रीऑर्डर लेवल और यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर, मतलब ये जो रीऑर्डर लेवल मुझे ये बताता है कि अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 20 से नीचे हो गया तो मुझे अब ऑर्डर देना है, कि मेरे पास स्टोर में अमाउंट जो है 20 से नीचे हो गया तो मुझे अब ये ऑर्डर देना है। देन आता है मेरे पास मिनिमम मिनिमम रिकॉर्डिंग रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कि अब मुझे कितने क्वांटिटी को रीऑर्डर करना है। मतलब बैच होता है ना नॉर्मली कि हाँ मुझे 25 ही है, तो जो अब मैं जो बनाऊंगा प्रोडक्शन टीम को बोलूंगा भाई 25 मुझे माइकमैन के चाहिए, तो वो फटाफट 25 का प्रोडक्शन करेंगे और वो हमें प्रोवाइड कर देंगे। वैसे अगर हम उसमें देखते हैं हमारे बाकी जो चीजें हैं रॉ मटेरियल में, अगर रॉ मटेरियल में सेट करना चाहे चीजें, जैसे कि मैंने ब्लैक नेट सेट कर रखा था यहाँ पे, कि ब्लैक नेट को आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैक नेट हमने सेट कर रखा है कि मेरा 15 पीस होगा तो मुझे शॉर्टफॉल माना जाएगा, मैं ऑर्डर करूंगा, ऑर्डर कितना करूंगा, 100 पीस करूंगा। लेकिन इस केस में आप देखेंगे मेरे पास जो ब्लैक नेट है वो माइनस का 100 हो चुका है, और मेरा शॉर्टफॉल कितना है, 115 का। देन पूरा का पूरा क्या करूंगा, 115 को रिप्लेस करूंगा। मतलब मिनिमम ऑर्डर मेरे पास इतना मेंटेन होने चाहिए। तो जो भी है मैं इन चीजों को क्या करूंगा, ऑर्डर प्लेस कर दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, अभी इस वाले टैली में क्यों नहीं हो रहा, मेरे जो लाइव टैली में कर रहा था, मैं एक वैसा सॉल्यूशन देख के मैं आपको बता दूंगा। माइट भी यही प्रॉब्लम होगा कि एजुकेशन वर्जन में आ चुका है, उसकी वजह से उसमें उस वाले टैली में क्रिएट नहीं हो रहा। तो मैं इसका जो एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो या 5 मिनट का वीडियो अलग से बना करके मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। मैं अभी नेट के चक्कर में जो एजुकेशन में आया उस चक्कर में शायद वहाँ पे नहीं आ। अभी आपने ठीक है, तो जो ऑर्डर मास्टरेशन में गए थे वहाँ पे आ रहा था नहीं वो इस वाले टैली में अच्छा वो टैली है। हाँ, बट जो इस वाले टैली में ना, वो मैंने इस वाले टैली में ना, जो टैली प्राइवेट लिमिटेड वाली में, इसमें पूरी चीजें मैंने डाल रखा है। ओके, जीएसटी वगैरह सब कुछ इनेबल है उसके अंदर ना, प्रॉपर एड्रेस डाला हुआ है चीजों का, गोडाउन का एड्रेस प्रॉपर डाला है, तो उसमें आ रहा है। बट जो ये टैली इस वाले में नहीं आ रहा है, मैं चेक कर लूंगा इसका रीजन क्या है। इसका रीजन जो होगा सॉल्यूशन में ये भी बता दूंगा कि किस लिए नहीं आ रहा था। मुझे जो लग रहा है ये इसके जो, मैं एक बार और ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता आ जाए।
अगर आप ऑल्टर मास्टरेशन में टाइप करें रीऑर्डर, अभी टाइप किया था आपने, तब आ रहा था। हाँ तो यार मास्टर आ रहा है, नहीं मैंने Go to इसमें पे। किया था, मैंने इसमें किया था, अगर जैसे ही इसमें करेंगे तो आ रहा है। हम्म। ये देखिए स्टेटस आ जाता है इसके अंदर में सब कुछ। ठीक है, इसमें मैंने स्क्रीनशॉट लगा तो रखा है ना, एक मिनट, कुछ गलती नहीं कर रहा बट वही प्रॉब्लम आ रही है चीजों का। आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा आता है लिखा हुआ, देखिए गो टू में जाएंगे, मास्टर ऑल्टरेशन में जाएंगे और यहाँ पे आपको रीऑर्डर क्लिक करेंगे तो आपको आइटम बनाने के लिए आएगा। ठीक है, अब उस टाइम ये मेरे पास एक्टिव में था तो आ लेकिन रहा था, ये मैं देखेंगे समझ आप गया एक्टिव मोड में डाला हुआ है। यस, वो बस एक मिनट दो सर, एक मिनट में सम अप कर देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। क्रिएटिव ना जाके एक मास्टर लेवल का आ जाएगा किस करेंगे तो स्टॉक हो में आपको जाएगा। रीऑर्डर बनाना है। देन आप यहाँ पे क्या सर? आप क्रिएटिव हेलो, में जाके जा रहे थे, आप मास्टर अल्ट्रेशन में जाके टाइप करेंगे तो आ जाएगा। ओके यस, थैंक यू सर। जैसे अब आप यहाँ पे देखेंगे माइकमैन मीडियम, मुझे माइकमैन मीडियम का ना लोअर ऑर्डर रीऑर्डर सेलेक्ट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपलर वाले रीऑर्डर में जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे करूंगा माइकमैन मीडियम का। अगर मेरे पास कितना था, मैंने 85 से एंट्री मारा था ना, 20 में डाल देता हूँ कि रीऑर्डर क्वांटिटी 20 से नीचे आएगा तो मुझे बोल देंगे कि आपको रीऑर्डर करना है और कितना करना है, 50 क्वांटिटी करना है। ठीक है, तो ये मैंने माइकमैन मीडियम का सेट कर दिया है। वैसे ये माइकमैन स्मॉल का सेट करूंगा कि जैसे ये 30 क्वांटिटी से नीचे होगा तो आपको 75 क्वांटिटी बनाने हैं या परचेज करने हैं, कैसे भी करके। ठीक है, तो वैसे ये स्मॉल केस में 30 से नीचे होगा तो, अगर स्मॉल केस में 30 से नीचे है मेरा स्टॉक तो मैं 75 ऑर्डर करूंगा। ठीक है, तो आपको आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से क्वांटिटी में आपको रीऑर्डर करना है। अब आप रॉ मटेरियल में भी चेक कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल में आपको कौन कौन सा रीऑर्डर करना है। अब इस केस में देखेंगे आपको कोई रीऑर्डर नहीं करना, क्योंकि मैंने केवल पहले वाले में रीऑर्डर लेवल सेट किया था। 750 क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, रीऑर्डर लेवल 500 का है और मेरे पास मिनिमम 500। अगर ये मेरा 750 जो है, अगर 750 500 से नीचे हो जाता ना तो मेरे पास इस कॉलम में दिखा रहा था ऑर्डर टू बी प्लेस वाले कॉलम में। ठीक है, मैं दोबारा रीऑर्डर वाला दिखा रहा हूँ, दोबारा से बाहर आ गया, मैं बिल्कुल गेटवे ऑफ टैली पे आ गया। देन आप क्लिक करेंगे गो टू पे, गो टू पे क्लिक करने के आप जाएंगे क्रिएट मास्टर पे, यहाँ पे जाएंगे ऑल्टर मास्टर पे जाएंगे, देन यहाँ पे रीऑर्डर। ठीक है, रीऑर्डर पे क्लिक करेंगे, जिसमें आपको रीऑर्डर लगाना है आप सब में रीऑर्डर लगा दीजिए। बेस लेवल 500 से नीचे हो तो 600 ऑर्डर कर दिया जाए। ठीक है, कंट्रोल ए। बॉक्स अगर आपका 500 से नीचे है तो 750 ऑर्डर कर दिया जाए, कंट्रोल ए। फ्रंट साइड अगर आपका 400 से नीचे है तो आप 700 ऑर्डर कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें आप ऐसे अपना रीऑर्डर और मिनिमम ऑर्डर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार में ही आप आपने सेट कर दिया चीजों का। चलो मैं जेल भी सेट कर दो, जेल तो ऑलरेडी नेगेटिव है मेरा। 100 ग्राम से नीचे हो, 100 ग्राम नहीं 1 केजी लेते हैं, 1000 ग्राम तो नहीं लेते एटलीस्ट, तो 1000 ग्राम का ऑर्डर कर दिया जाए 1 केजी का। देन आता है सर एमआरपी स्टिकर, 100 से नीचे, 100 से नहीं 500 से नीचे हो तो 600 ऑर्डर कर दिया जाए। तो अब आप देखेंगे सर, अब आप लोग देख सकते हैं कि जब मैं गोटू में जाऊंगा और रिपोर्ट देखूंगा, रीऑर्डर रिपोर्ट, तो रीऑर्डर रिपोर्ट पे जाऊंगा। फिनिश गुड्स तो मैं दिखा चुका, रॉ मटेरियल का देख लेते हैं। रॉ मटेरियल में इसमें कह रहे हैं किसी में भी आपको ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट इस वाले में, जेल वाले में। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनफ स्टॉक बचा हुआ है। 750 ये वाले बचे हैं, 750 ये बचे हैं, लेकिन रीऑर्डर लेवल कितना है मेरा? 500। मैं एक और बॉम्ब की एंट्री पास कर देता हूँ, सारे नेगेटिव हो जाएंगे, तब चीजें और अच्छे समझ में आ जाएंगी कि हम रिपोर्ट्स देखते कैसे हैं। मैं एक उठाता हूँ मैन्युफैक्चरिंग में,
मैन्युफैक्चरिंग एंट्री में, और मैं एक और एंट्री मार देता हूँ स्मॉल का, माइक मैन स्मॉल का एंट्री कर देता हूँ। लोकेशन मेरा कौन सा था, स्टोर प्रोडक्शन में करता हूँ, और मैं 100 एंट्री और 100 में नहीं होगा कम, कितना 500 थे ना, 100 में कम नहीं होगा, मैं इसको ना 200 जनरेट करता हूँ चीजें, 200 में 300 करूंगा तो ये सारी चीजें थी ना अब वहाँ पे देखे ना नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा। अब आ जाता है फिर से रीऑर्डर स्टेटस मुझे चेक करना है, रीऑर्डर स्टेटस चेक करेंगे हम, फिनिश गुड्स। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग, मैंने बोला था बैक साइड कितना है, 450 हो चुका मेरा क्लोज स्टॉक, रीऑर्डर लेवल कितना है 500, तो मुझे कितने शॉर्टफॉल कितने हो गए, 500 यूनिट का शॉर्टफॉल हो गया, तो मिनिमम ऑर्डर कितना हो चाहिए 500, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। मतलब जितना ही मेरा स्टॉक से जैसे रीऑर्डर लेवल से नीचे होगा, एक लिमिट है 500 की, वो हम क्या करेंगे, उसको रीऑर्डर कर देंगे। ठीक है, वैसे बैक देखेंगे 450 था, रीऑर्डर लेवल 500 था, उससे कम होते ही मैंने क्या कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया 600 का। ठीक है, वैसे आप देखेंगे यहाँ पे 400 था, रीऑर्डर लेवल मैंने बोला था 500 है, 500 जैसे नीचे आएगा मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। ठीक है सर, तो हम यहाँ से ऐसे रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज क्लास के लिए इतना ही था सर मेरे पास, और इन सब का स्क्रीनशॉट्स मैंने ऑलरेडी लगा दिया इसके अंदर में, यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट है, आप देखेंगे जो सर ने बताया बीच में, एक्चुअली सच में वो मास्टर ऑल्टरेशन में था, तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा हुआ है। सो मैंने ये सारी चीजें कवर कर दिया है, स्टॉक आइटम बनाना, ये जो सारे चीजें मैंने स्टोर जो इन्वेंटरी मास्टर्स में तो सारी चीजें कवर कर दिया। देन आपका जो स्टोर समरी देखना है, स्टॉक समरी देखना मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पे F12 करके आपको जिस तरीके से देखना है आप उस तरीके से देख सकते हैं, जो चीज यस करना है नो करना है आप वो चीजें करके देख सकते हैं। ठीक है सर, तो ये रिपोर्ट्स जो स्टॉक की जो रिपोर्ट्स है वो कल को जो आपसे मैनेजमेंट मांगते हैं कि इन्वर्ट कितना हुआ आउटपुट कितना हो, तो आप यहाँ से यस नो करके आप दे सकते हैं सारी चीजें, आपको अलग से एक्सेल बनाने की कोई जरूरत नहीं है सर। आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं चीजों को कि इन्वर्ट कितना है, आउटपुट कितना है, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, ये चीजें आप दे सकते हैं। मैनेजमेंट मांगती है कि नेगेटिव स्टॉक कौन सा है, आप यहाँ से निकाल के दे सकते हो, ये नेगेटिव स्टॉक कौन सा है। मैनेजमेंट मांगता है कि किस किस में रीऑर्डर करने की जरूरत है, तो आप रीऑर्डर कहाँ से कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। रीऑर्डर आप यहाँ से जाएंगे, दोबारा मैं बता रहा हूँ ये चीजें कि रीऑर्डर में जाइए, आप स्टेटस में चेक कीजिए, फिनिश गुड्स का चेक करना है तो आप बताएंगे जी दोनों केस के समय रीऑर्डर करना है, तो आपको इसी केस में आपको रीऑर्डर करना है। जो भी मैनेजमेंट आप डिटेल मांगेंगी आपके पास रेडली अवेलेबल होगा। सो फॉर द डे, थैंक यू फॉर द डे। आज मेरे पास इतना ही है बताने को। तो हेमंत सर, over to you. Thank you, Nitesh, for such a wonderful presentation and a wonderful session. And I just now came to know that you are not well, but still the session was very knowledgeable and very wonderful, and it shows dedication towards your work. We are working here. We are not well, but still we are taking the sessions. It's highly commendable, and thank you so much for the wonderful session. वेलकम मैम, थैंक यू सो मच सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। Thank you so much, Nitesh. वेलकम जी। और हेमंत सर आप भी कुछ कहिए। वैसे हेमंत सर आप लोगों को बता दूं, हेमंत सर और हम दोनों साथ में काम करते हैं, और यहाँ पे जो शिल्पा है और हेमंत सर मेरे सीनियर हैं, और हम लोगों में सीनियर और जूनियर जो है मतलब काम के टाइम पे सीनियर है, वैसे हम लोग मजाक भी खूब करते हैं, इसलिए मैंने बोला और बताइए हेमंत सर। तो आज का सेशन बहुत अच्छा था। आपने जो स्टॉक के बारे में बताया, एक्चुअली अभी तक मैंने पर्सनली किसी कंपनी में अप्लाई नहीं करा था, नॉर्मली सारे मैनुअल चलते थे। एक्चुअली मेरे पास एक क्लाइंट है जिसे बिल ऑफ मटेरियल बनाया जाता है, तो इसलिए मेरे को पता था चीजें। हाँ, तो बस वही इसलिए हमने सोचा कि बिल ऑफ मटेरियल को सॉर्ट, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज का। हमने आज तक इस चीज को नहीं देखा, सिर्फ स्टॉक का ऐसे काम होता है इतना पता था, ऐसे हमारे टीकेसी एकेडमी की तो यही खास बात है सर, आप उधर टीडीएस सैलरी में एक्सपर्ट है, इधर ये बिल्स पेबल रिसीवेबल्स इनकम टैक्स में एक्सपर्ट है, मैम टीडीएस एक्सपर्ट है, तो मैंने थोड़ा सा स्टॉक के बारे में जो मेरे पास नॉलेज था वो मैंने शेयर कर लिया। बिल्कुल जीएसटी की नॉलेज था, तो यही चीजें है कि हर लोगों की जो जिस फील्ड में नॉलेज है उनको एक साथ ला करके एक प्लेटफॉर्म पे देना,
ताकि हमारे मेंबर्स और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लर्नर है उनको हेल्प मिले। हमारा तो यही एम है, यही उद्देश्य है। और हमारा एम यही है, हम तो ये भी चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं या हमारे जितने भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनमें से भी अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहे, जैसे शिल्पा ने बताया कि रेफरल प्रोग्राम हमने चालू किया है, तो सिर्फ इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़े, कि हमारे कोर्स में एनरोलमेंट करवाएं तो रेफरल 10% जैसे उनको मिलेगा। प्लस इवन वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके लेक्चर भी देना चाहते हैं, किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट है तो हम उनका भी वार्म वेलकम करते हैं, ताकि वो लोग यहाँ पे आके अपनी नॉलेज शेयर कर सके लोगों के साथ, ताकि हमारा अकाउंट्स का प्रोफेशन जो है एक हाई लेवल पे पहुंच सके। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। तो क्लोज करते हैं आज का सेशन, कल मिलते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। Thank you.